Hello everyone, this is Vishasha Mishra. On behalf of BCP CSR Committee, we are extremely sorry for the inconvenience caused. Actually, due to some network issue, we have to shift the platform. So now we are back. Let's keep the spirit going. Hello and a very good evening to everyone present here. This is Isha Thakur and I welcome to you all at this wonderful session of yoga and meditation. I would like to welcome our today's speaker, Mr. Vijay Kukreja, our student coordinators, Dr. Galvina Pereira and Dr. Sagar Patel, and our BCP CSR committee member and our very own and loving audience. Now, I would like to hand over to our CSR head, Miss Vishasha Mishra, for introducing our today's speaker. Over to you, Vishasha. Thank you so much, Isha, for such a wonderful introduction. So, on behalf of Bombay College of Pharmacy and BCP CSR Committee, I would like to welcome you all for this wonderful session. A very good evening to one and all. So, let's put our daily stress aside for now and to learn the tricks for the healthy and stress-free lifestyle. Now, I would like to welcome Mr. Kokreja sir for this wonderful evening. Welcome, sir. Thank you. Sir is a yoga teacher, yoga consultant, and a naturopath. He is certified by YCB, that is Yoga Certification Board. Besides all this, he is also a founder of a very famous institute, that is Naturopathy Institute, named as Arogya Mandir Naturopathy Institute. Sir is also an author of many health-related and yoga-related books like Yoga and Wellness, Lose Weight and Not Hope, Yoga and Youth, and also many more books. Also, he is awarded with Jeevandeep Gaurav Puraskar. Uh, Sir is Yoga Ambassador at Murbad Legislative. Yoga takes you to the present moment, the only place where life exists. So now, without wasting any minutes and to make every second precious, now I would like Mr. Vijay Kukreda sir to continue with the session and help us to live with a healthy and happy life. Over to you, sir. Thank you, Vishashaji. Thank you. And really, I really appreciate you all guys, the entire your team, such a great initiative you are taking, and I'm seeing your efforts and your dedication, everything. So I'm really happy to be a part of your entire efforts and team. So I'll just start with my session with giving all the thanks. और उसके बाद थोड़ा सा see, today's session will be English and Hindi and Sanskrit. Three languages will be mixed there because the yoga is ancient texts are in Sanskrit. So like Sanskrit and then little Hindi and then English. So there will be the combination. I hope it will be okay with you all. Okay. So Yes, sir. first of all थोड़ी बहुत जो टेक्निकल इश्यूज आजकल ये डिजिटल ऑनलाइन हो ही रहे और तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बट फिर भी आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से उससे मैनेज करने का कोशिश किया सो रियली दैट्स ग्रेट सो आप सभी का भी ज़्यादा समय न लेते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है लेट्स गो ऑन टू दैट हियर जस्ट आई थिंक एट आफ्टरनून मुझे गौरव जी ने एक उनका सर्वे शेयर किया. So Gaurav ji, if you are there, I would really again appreciate your efforts again for this also because उसमें आपने जो पूरी questionnaires आपके थे and आपने जो एक survey किया that was really good to and helpful for me also ताकि हम और properly interact कर सकें. So according to that, your survey I'm talking starting. थोड़ा सा हम आगे जाएंगे main topics पे उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करें. Just keep yourself mute so that disturbance जो है voice का किसी को भी ना हो and you all can attend nicely. So according to your survey, 54% responses are कि वो online digital माध्यम से they are not so comfortable and I can understand क्यों हम uncomfortable है ये पूरे digital platforms से because ये बहुत सारा connecting issue और continuously ये देख कर eye strain होना concentration की difficulties होना ये सारी चीजों से हम गुजर रहे हैं लेकिन of course we all know that अभी के situation में और कोई option भी नहीं है. थोड़ा सा हम इस डिफिकल्टी को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और दूसरा मैंने जो ये देखा तो 58% उन्होंने एक रेशियो मुझे शेयर किया दैट इज अफेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ
यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे पैंडेमिक में हम कहीं स्ट्रेस से गुजरे हैं या ऐसे सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ा है विच वाज डिफिकल्ट, यानी अभी भी हम कुछ डिफिकल्ट फेजेस से गुजर ही रहे हैं इनफैक्ट। तो ये सारे अच्छे से आपने सर्वे उसका किया है। एंड देन लैक ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इंथुजियाज्म की कमी हो रही है, स्टडीज जो है बराबर से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके सर्वे में मुझे वो रिपोर्ट में दिखी। एंड ड्यू टू दैट वी आर फेसिंग सम हेडेक, आई स्ट्रेन and the stress and all these things we are facing nowadays. So the most fascinating part जो मुझे आपके सर्वे रिपोर्ट में मिला, that was 72% responses are saying that they believe yoga and meditation can calm their mind, and I really applause for you all कि at least आप सब ये जानते हैं कि yoga can and yoga will surely help for this. So 72% आपका जो रेशो ये बता रहा है कि हम सभी को ये लग रहा है कि योगा कैन डेफिनेटली हेल्प इन दिस सिचुएशन। तो आपके कुछ क्वेरीज भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो हम लास्ट में थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ संस्कृत श्लोका। आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जहां पे भी है जस्ट सिट स्ट्रेट, आप चेयर पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, जहां पे भी जस्ट बैक स्ट्रेट एंड कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड ग्रेजुअली क्लोज योर आईज। सभी आंखें बंद कर लें। राइट, एक श्लोक मैं रिसाइट करने जा रहा हूं, एक एक लाइन में बोलने वाला हूं, मेरे बाद आप उसे रिपीट करने की कोशिश करें। अगर आप तक आवाज नहीं आ रहा है या प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, जस्ट ट्राई। नहीं भी हुआ तो बिकॉज दैट श्लोक हैज सम मीनिंग व्हिच आई विल कन्वे यू आफ्टर रिसाइटिंग दैट श्लोक। सो लेट्स गेट रेडी फॉर अ श्लोका। बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। विचारों की ओर दुर्लक्ष्य करते हुए ध्यान श्वसन की ओर। Complete concentration. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। Relax. Slowly open your eyes. होप आप में से किसी ने शायद ये श्लोक पहले सुना हो या किसी ने फर्स्ट टाइम सुना हो। ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातें आज हमारी इंटरेक्ट होने वाली हैं। कुछ बातें शायद आपको थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि बोरिंग लग रही, बट लेकिन दे आर नॉट बोरिंग, और कुछ बातें शायद आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगी। तो दिस विल बी द ऑल कॉम्बिनेशन। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको एक अच्छा जस्ट योगा क्या है वो भी मिल जाए, और किस तरह से हम इस सिचुएशन में उस योगिक नॉलेज का प्रैक्टिकली हम उसे अप्लाई कर सकते हैं टू मेक आवरसेल्फ मोर हेल्दी एंड मोर रिलैक्स्ड। So let's start with the श्लोका। तो योगा का जो फर्स्ट ग्रंथ इज रिटन, यानी कि ऐसे तो योग बहुत पुराना है, 10,000 साल करीब हम कह सकते हैं कि दिस नॉलेज इज देयर, बट जो कंपाइलेशन, एक प्रॉपर कंपाइलेशन करने का जो श्रेय है वो जाता है पतंजलि। एंड दैट पतंजलि नेम यू ऑल माइट बी, इट्स अ वर्ल्ड फेमस नेम राइट नाउअडेज, बट लेकिन अभी वो ज्यादा जो फेमस है दैट इज ड्यू टू सम प्रोडक्ट्स बेसिकली। बट पतंजलि जो है वो एक सेज थे, एक ऋषि थे जो आज से करीब 2500 साल पहले थे। तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत में उसे सूत्र कहा जाता है, सूत्र लिखे उन्होंने, देयर वर ऑफरिज्म्स, यानी कि 195-96 सूत्रास आर देयर, जिसमें उन्होंने पूरी योगिक नॉलेज को लिखा with a very systematic method, with a very systematic manner, right? Now you can share the PPT presentation, yeah. तो ये श्लोक है भी आपके सामने, जिसका मैं आपसे मीनिंग शेयर करने जा रहा हूं कि योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। अब ऐसा है कि ये जो 2500 साल पहले जो पतंजलि मुनि थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन ग्रंथ लिखा, एक एंशिएंट टेक्स्ट इज दैट, और उसी के आधार पे आई वुड रियली लाइक यू टू शेयर कि आज सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसका मुख्य बेस आधार जो है दैट इज दिस ग्रंथ। पातंजल योग सूत्र इज द नेम, राइट? पातंजल योग दर्शन भी उसे कहा जाता है, इट्स इंडियन फिलोसॉफी, राइट?
तो इसी के बेस पे देयर आर सर्टिफिकेट कोर्सेज, देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज, देयर आर डिग्री कोर्सेज एंड देयर आर मास्टर्स एंड पीएचडी आल्सो यू कैन डू ऑन द बेस्ड ऑन दैट ग्रंथ। अब वो पतंजलि के बाद काफी सालों बाद एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि, उन्होंने ये श्लोक लिखा और इस श्लोक में ही हैज रिटन द क्वालिटीज ऑफ पतंजलि, राइट। तो ये श्लोक की मैं आपसे क्वालिटी शेयर करता हूं, थोड़ा बहुत हम समझेंगे योग क्या है तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। देयर आर 3 क्वालिटीज अबाउट पतंजलि। तो पतंजलि की पहली क्वालिटी वो बताते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, कि ऐसे वो ऋषि थे जिन्होंने योग की सहायता से यानी कि योगिक नॉलेज से, उसकी प्रैक्टिस से चित्त, इस सो कॉल्ड वी कैन से मन, माइंड, मन का मैल यानी कि अशुद्धि दूर की। एंड थोड़ा थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक लेवल पे हम ये समझ सकते हैं जो हमारा नेगेटिव माइंड है उसको कंप्लीटली एक उन्होंने पॉजिटिव टर्न उन्होंने किया। इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि पतंजलि वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज उनका इतना अच्छा साइकोलॉजी का स्टडी था कि सारी साइकोलॉजी को उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण दिया। इट्स अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ पतंजलि सेट। दूसरा जो क्वालिटी है दैट इज मलम शरीर से च वैद्यकेन। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और फिर हम आगे मेन जो टॉपिक्स है उसकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू ऑल कि उनका रोल क्या है हमारे इस पूरी योगिक जर्नी में। सेकेंड क्वालिटी है उनका मलम शरीर से च वैद्यकेन। मलम यानी कि अगेन देयर इज अ impurity, he is talking about impurity, but these impurities are of physically. Earlier we were discussing that was mental and now this is physical, यानी कि शरीर के मल यानी कि अशुद्धि ऑफ इनर बॉडी। अब अगर उसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी अगर हम देंगे तो दैट इज टॉक्सिक कंडीशन इनसाइड द बॉडी। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि देयर आर वेरी गुड प्यूरिफिकेशन मेथड्स इन योगा जो और इवन आयुर्वेदा दोनों में भी, उनके माध्यम से उन्होंने शरीर के अंदर की शुद्धि, नाउ दिस व्हाट वी आर डूइंग, इट्स अ सैनिटाइजेशन। यानी कि नाउ वी ऑल नो अगर अच्छा हेल्थ रखना है तो दिस हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। तो नाउ यू जस्ट इमेजिन thousands years ago this all our ancient texts are saying the same कि hygiene, but अब हम जो ध्यान दे रहे हैं that is just external hygiene, but these our ancient granthas are saying internal hygiene is also most important। तो उसके लिए बहुत अच्छे purification methods है योगा में जो हम सीख सकते हैं, उससे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो he was the master of that also, that पतंजलि। उन्होंने शरीर की भी अशुद्धि दूर की इन सारी शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से, यानी कि he was the scholar of Ayurveda also। Now you just see the qualities. First he was known as psychologist, second he is known as Ayurveda, and the third he is known for grammar, right? Because हमारी भाषा even हमारी लैंग्वेज में सिर्फ अगर ग्रामर चला जाता है तो that language becomes so called we can say it's impure। तो ये 3 qualities are Patanjali, and Patanjali is said it's called a father of yoga, right? तो थोड़ा सा हमने उनकी brief introduction से आज के सेशन की शुरुआत की है। Now our next topic is holistic health and health problems, as this topic is scheduled for, right? कि holistic health क्या है and health problems क्या है, ओके। और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो आज का जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल, यानी कि लॉकडाउन अप्लाइड 3 मेन एरियाज। अगर हम देखेंगे तो लॉकडाउन और कोरोना के चलते सारे जो चेंजेस हुए, द 3 मेन एरियाज वर अफेक्टेड। फिजिकल मूवमेंट आउट ऑफ द होम, हम सभी अपने घरों पर आ गए, यानी कि ज्यादा जो हमारे मूवमेंट यूजुअली होते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। या समवन इज अनम्यूट, जस्ट प्लीज चेक योर वॉइस, या प्लीज, थैंक यू। और सेकेंड टॉपिक इज सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन आउटसाइड द होम। अब पहले का एक समय था कि हम फ्रीली जा रहे थे, आ रहे थे, देयर वाज नथिंग लाइक दिस, बट नाउ वी हैव टू बी मोर एंड मोर केयरफुल। अगर हम बाहर जा भी रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं तो काफी सारी बातों का ध्यान रखना है। रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी हो रही है बहुत सारी चीजों का, ये 3। अब इससे हमारे हेल्थ का एंड योगा का क्या कनेक्शन रिलेशन है, ये कुछ बातें आज हम आगे समझेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि लॉकडाउन का कंप्लीट सिचुएशन वाज entirely new for everyone। मतलब एक नया कुछ तो चेंजेस हो गए जो हम कोई भी अवेयर नहीं थे, किसी को पता नहीं था, and everyone was finding, even the scholars, doctors, scientists, everyone was busy, still they are working on that। तो ये सिचुएशन में आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं कि हमारे जो कंफर्ट जोन थे
where we were living in our comfort zones, वो सारे के सारे एक प्रकार से शैटर्ड हो गए। यानी कि हमें फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगता था, बाहर जाना अच्छा लगता था, या बाकी सारे जो हमारे कंफर्ट जोन से हम कुछ समय के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। एंड ड्यू टू दैट हमारे लाइफ में एक डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ बहुत बार। स्टार्टिंग में भी मतलब स्टार्टिंग में बहुत लोगों का हेक्टिक शेड्यूल था, उन्हें एक प्रकार से छुट्टियां मिल गई, दे वर मोर रिलैक्स्ड इन देयर लाइफ, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से वी वर फेसिंग सम डिफिकल्ट फेजेस। एंड द सेकंड थिंग अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फियर फैक्टर, there were two type of fear factors, एक तो physical health का fear factor, still someone is unmute, I can see the name here, Jaina Raval. Hello sir, can you make me a BCP CSR as a host? You are the host, so I'll manage accordingly. Yes, thank you. BCP CRS. Sorry CSR, for na? interruption. Yeah sir. No problem. Now you just check, it is there, right? I think now you can manage. Yes sir. It's done? Okay, yeah, thank you. So there were two type of fear factors which I had observed. One was the physical fear factor, नहीं कि हमें ना कुछ हो जाए, ये एक डर हमारे अंदर constantly, इनफैक्ट अभी तक है। किसी के अंदर उसका प्रमाण ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, परसेंटेज इज लेस एंड मोर, बट दैट इज देयर। एंड देन सेकंड फियर फैक्टर क्या है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी हम काम कर रहे थे, बहुत सारे काम चेंज हुए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले फाइनेंशियली। तो ये दो प्रकार के फियर फैक्टर्स की वजह से एंग्जाइटीज हैज डेवलप्ड, यानी कि चिंताएं बढ़ गई कि एग्जैक्टली अब क्या होगा, हम इससे कैसे बाहर आने वाले हैं, और फाइनली हम जैसे पहले थे वैसे होने वाला है या नहीं, कि उससे कुछ बुरा होगा या उससे ज्यादा अच्छा होगा, वी डोंट नो। तो एंग्जाइटीज डेवलप होने लगे, ड्यू टू दैट कांस्टेंट एंग्जाइटी टेंशंस बढ़ने लग गए, ड्यू टू दैट more stress was observed. Even still we are observing more stressful situation, because हमारा पूरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स भी है जिनसे भी मैं जब चर्चा कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि इतने सेडेटिव्स की पहले जरूरत नहीं पड़ रही थी जितनी अभी। सेडेटिव्स यू माइट बी नोइंग कि थोड़ा सा calm down the mind, हमें अगर कोई चीजों का मेडिकेशन लेना पड़ता तो we can use that in a way। तो ये सारी चीजों के मेडिकेशंस बढ़ गए ड्यू टू दिस कंटिन्यूअसली फियर फैक्टर, एंजाइटी, टेंशन एंड स्ट्रेस। तो ये सिचुएशंस हमने अभी रिसेंटली फेस किए हैं, धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा वो मुझसे बाहर आने लगे हैं, लेकिन स्टिल वी आर इनटू दैट। ओके, सो व्हाट इफ वी आर इन एंजाइटी, टेंशन एंड स्ट्रेस? तो हम ये खुद को पूछ सकते हैं कि अगर एंजाइटी, टेंशन है या स्ट्रेस है, तो आप में से किसी को लग सकता है, तो व्हाट इज दैट? लेट इट बी, हम हैं स्ट्रेस में। व्हाई इट इज सेड वी शुड बी स्ट्रेस फ्री? व्हाई इट इज सेड कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए या स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए? एक तो यह है कि स्ट्रेस में हम खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लेकिन देयर आर मेनी अदर रीजंस व्हाई वी शुड बी स्ट्रेस फ्री। एंड देन कॉमनली हम थोड़ा सा योगा के टॉपिक पे भी जाएंगे कि कॉमनली अब सिंस 18 years आई एम प्रैक्टिसिंग योगा, आई एम लर्निंग योगा एंड आई एम जस्ट ट्रेनिंग ऑल्सो। तो the majority of persons are approaching with the diseases, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे व्याधि, right? Disease, one of the most common reason to join yoga. आज तक मैंने बहुत कम लोगों को मुझे ऐसे मिले हैं जो मेरे पास आए और मुझे कहा है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आई वांट टू जॉइन योगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने ऐसे कुछ लोगों को भी ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे क्लासेस के बाहर है एंड दे आर वेटिंग, देयर वाइफ एंड मदर और फादर इज इनसाइड इन द क्लासरूम, कि वो कब बाहर आते हैं और मैं उन्हें लेके जाता हूँ। तो तब मैंने उनको पूछा कि आप बाहर क्यों हैं, आप आ जाइए अंदर प्रैक्टिस के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने मेरे मम्मी को लाया, शी इज अटेंडिंग योर क्लास। यानी कि देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि जब तक हमें कुछ हुआ नहीं है तब तक योगा क्यों करना है। मुझे तो कोई बैक पेन नहीं है, मेरा तो वेट भी नहीं बढ़ा है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो व्हाई योगा? सो बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि योगा इज टू मेक अस फ्री फ्रॉम द डिजीजेस। ओके, तो दिस इज द वन रीजन। तो मैं कहना चाहता हूं कि चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इफ वी आर इन अ डिजीज, अगर हमें नी पेन है, बैक पेन है, स्ट्रेस है या डाइजेशन डिसऑर्डर है, बैक पेन है, आजकल तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, वी कैन सी मेनी अदर डिजीजेस आल्सो। तो व्हाई, क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा सा आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, थोड़े से उसके डीप रूट कॉजेस। देखिए, एक तो होता है सिम्टोमेटिकली हम ट्रीट कर सकते हैं उन्हें,
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम फ्यू root cause factors also which I would like to share with you in this today's session. तो अगर हम देखेंगे तो कॉजेस क्या हो सकते हैं डिजीज के, एक तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन है और बाकी सारे हमारे पास पैथोलॉजी है कि जिससे हम ये ढूंढ सकते हैं कि उसकी कॉज क्या है और उसके लिए हमें डायग्नोसिस कैसे करना है और आफ्टर डायग्नोसिस व्हाट आर द मेडिकेशन एंड द ट्रीटमेंट मेथड्स दैट वी ऑल नो। तो आज हम थोड़ा सा उस डिस्कशन में नहीं जाते हुए योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉजेज ऑफ डिजीजेस का अगर हम देखेंगे रीजन क्या है, बिकॉज सी नॉर्मली जो ये हमारा द मेजर रीजन आई फाउंड इज इनडिफरेंट एंड इनएक्टिवनेस। वी आर रियली इनडिफरेंट फॉर आवर ओन हेल्थ, रिगार्डिंग आवर ओन हेल्थ। जस्ट प्रीवियस स्लाइड रखेंगे फिलहाल। तो इनडिफरेंट एंड इनएक्टिव, वी हार्डली एवर गिव एनी सीरियस अटेंशन टू आवर हेल्थ प्रिजर्वेशन। तो बिकॉज हम ऐसा हमें लगता है कि हमें अब जब तक कुछ हुआ नहीं तो व्हाई इट इज नीडेड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। इट मींस वी आर वेटिंग टू हैव समथिंग, यानी कि पहले हमें कुछ हो जाए तकलीफ, देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू। तो आई डोंट नो हाउ मच दिस थिंकिंग इज राइट, बट थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी, बिकॉज मैन इज रियली born with a strong resistance power. If this resistance power is perceived carefully, it can keep a person healthy till at the end of his life. तो the problem क्या हो रहा है, हमारा जो natural resistance power है, that is not that much supportive जितना वो होना चाहिए. Now you can just see this graph or this thing in front of your screen कि अगर हम देखेंगे तो disease, कुछ बीमारियां हैं, हम थोड़ा सा आज हम साइंटिफिकली जो हमारा जो मेथड है पैथोलॉजी की तरफ जाना, टेस्ट करना, वो कॉजेस की तरफ नहीं जाते हुए थोड़ा सा कुछ अलग फैक्टर्स को आज हम देख रहे हैं। तो डिजीज का एक मेजर कारण माना जाता है डिफिशिएंसी ऑफ योर नेचुरल रेजिस्टेंस पावर। हमारे खुद के अंदर जो जिसे हम इम्यून सिस्टम, आज सबसे ज्यादा फोकस हम कहाँ कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम पे कर रहे हैं। अगर इम्यून सिस्टम इज नॉट दैट मच स्ट्रांग, तो इवन दिस इज सेड कि मेडिसिन ऑल्सो आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज दवाइयों का भी इफेक्ट तब होता है जब हमारा खुद का रेसिस्टेंस पावर एक ऑप्टिमम लेवल पे हो। इसीलिए बहुत सारी दवाइयां इन द सेम डिजीज किसी को 15 दिन में ठीक कर देते तो किसी को महीना लग जाता है। दैट इज ड्यू टू अवर नेचुरल रेसिस्टेंस पावर, वो किसके अंदर कितना है। अगर हम उसका रूट कॉज देखेंगे तो क्या है, दैट इज वी आर निग्लेक्टिंग अवर हेल्थ। ये आपको कितना सही लगता है ये आपको चेक करना है, बिकॉज मैंने इतने सालों में यही एक्सपीरियंस किया है। लिटरली वी आर निग्लेक्टिंग। हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ बहुत पीछे आता है। हमें सुबह उठकर हमारे जॉब पे जाना होता है, घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, फ्रेंड्स को मिलना होता है, काफी सारे सामान लाने होते हैं। वी आर रियली बिजी, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर हेल्थ। एंड सी दिस थिंग कि कैसा रहस्य है। The health is the only thing which is going to be helpful for us to get everything which we want to get in our life. कि इस हेल्थ के आधार पे ही हमें सब कुछ मिलने वाला है लाइफ में, एंड वी आर निग्लेक्टिंग द सेम। नाउ सी दिस इज द, आई डोंट नो हाउ ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। आप किसी को भी कहिए रोज 1 घंटा, बहुत मुश्किल, रेयर लोग हैं जो टाइम निकालते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पर्संस आर नॉट गेटिंग टाइम, दे आर निग्लेक्टिंग। पर ये निग्लेक्ट करने से हम ये नहीं समझ पा रहे कि किसको तकलीफ होने वाली है। इफ आई एम गिविंग रीजंस टू माई सेल्फ, तो वेयर किसका फाइनली एक नहीं तो कल दिन खुद का मेरा ही तबीयत बिगड़ने वाला है। और अगर मेरा हेल्थ बिगड़ जा रहा है, सो हाउ एम आई गोइंग टू अचीव माई गोल्स इन माई लाइफ। गोल्स तो हमारे आजकल बहुत बड़े होते हैं, मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, लेकिन उसके लिए हेल्थ तो उतना अच्छा रखना पड़ेगा और उसके लिए उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। And then there are two beautiful words you can see that is written, pramad and moha. Pramad, I personally love that word. I don't know how you would think about that. आप में से किसी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, otherwise I'll share you. Pramad is the Sanskrit word and this is an obstacle as per Patanjali. I will tell you, explain you later. तो pramad का meaning है I can say is a negligence, और आई कैन से हिंदी में अगर मैं उसे कहूं तो सोच समझकर जानबूझकर की गई गलती। एज एग्जाम्पल वी ऑल नो, अगर हम जानते हैं कि टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हम रोज चाय पीते हैं, और जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन वी कैन नॉट लिव विदाउट जंक फूड। एंड ये दोनों बातें, सिगरेट इज इंजurious टू द हेल्थ, लेकिन वी स्मोक। दिस इज कॉल्ड प्रमाद। मतलब आज शायद जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी को ये भी लग सकता है ये आप क्या नया बता रहे, वी नो एवरीथिंग। तो यू मे बी राइट, आपको सब पता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज वेयर
ये पता होते हुए भी हमारे लाइफ में व्हाई कैन नॉट वी चेंज? हम उन्हीं आदतों से क्यों आगे जा रहे हैं? यानी कि हर वो बात जो मेरे लिए तकलीफदायक है, मुझे उससे मेरा हेल्थ बिगड़ने वाला है, वो मुझसे छूटती नहीं है। और जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, विच इज गुड फॉर माई हेल्थ, आई एम नॉट एबल टू अडॉप्ट दैट। वॉकिंग कल से करेंगे, रनिंग कल से करना है, योगा प्रैक्टिस करेंगे कभी तो, एक्सरसाइजेस विल डू स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक, नेक्स्ट मंथ। So always we are postponing all these things. So this particular pattern is called pramada. I hope you got the meaning. और ये कितना इंटरेस्टिंग है, और आप अभी आप फील करेंगे वही करते हैं। हम किसी को, अगर मैं आपको शायद बता दूं तो आप शायद मुझसे भी अच्छा लेक्चर डिलीवर कर लेंगे, इतना अच्छा नॉलेज है हम सभी के पास, राइट? बट वो हम अटक कहाँ जाते हैं? जब ये करना पड़ता है वो हमसे होता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि डिजीज का कारण है हमारा नेचुरल पावर कम होना, और उसका कारण है हमारा खुद की हेल्थ के प्रति निग्लेक्ट करना। और निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन प्रमाद। वी नो एवरीथिंग बट वी आर नॉट एबल टू फॉलो द राइट थिंग्स, एंड वी आर नॉट एबल टू ड्रॉप द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द स्ट्रेसफुल लाइफ। हम इतने स्ट्रेस में, आई डोंट नो व्हाई, बट वी ऑल आर इन स्ट्रेस। तो इतने स्ट्रेस में हम ये सारी बातों को कब समय दें, कब सोचें? वी डोंट हैव टाइम। इवन अभी भी आप मुझे सुन रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सब कॉन्सेंट्रेट कर पाए रहे होंगे, बिकॉज ये कभी कभी बातें बोरिंग हो जाती है और हम सोचे क्या ये चल रहा है, तो हमें पता है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट बी देयर एंड कंटिन्यू, बिकॉज कुछ बातें हो सकती है जो आपके काम में आ जाए आपके सेशन से। सो इसका रीजन इज व्हाट? द स्ट्रेसफुल लाइफ। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ का रीजन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, दैट इज इग्नोरेंस। हमें जितना मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, बहुत सारा नॉलेज हम ले रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग कोर्सेस में, लेकिन इस लाइफ को अप्रोप्रिएटली कैसे जीना है ये बहुत बार छूट जाता है। तो एक लिटिल इग्नोरेंस रिगार्डिंग हेल्थ is there. Now we complete entire team of Arogya Mandir is trying that only. हमारे हर सेशन से हम वही ट्राई करते हैं कि जो इग्नोरेंस कम हो, थोड़ा सा नॉलेज हमारे खुद के हेल्थ का में बढ़े, और ये जो लिथार्जी है कि हम बाद में करेंगे हेल्थ के लिए कुछ, ये कम हो, ताकि हर घर में एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस रहे, यानी कि एक सुख समृद्ध जीवन, आरोग्यवर्धक जीवन रहे। आज मैं देख रहा हूं कि कोई भी एक घर, नॉट इवन अ सिंगल होम इज विदाउट मेडिसिन। हर एक घर में दवाइयां हैं। नाउ यू कैन सी हमारा लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? वेयर आर वी? व्हाट आर वी थिंकिंग एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ये सारी चीजें मेरे मन में सवाल हमेशा रहते हैं कि कब हमें जागरूकता आएगी, कब हम देखेंगे कि हमारे लाइफ स्पैन कम हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही है, दवाइयों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहा हूं और उससे हमेशा बोल रहा हूं कि बाद में। So according to my knowledge, this is the very good graph. You can see कि बीमारियों का, डिजीज का cause है deficiency of natural system power, और उसका reason is neglecting the health, and उसका reason is the pramada. यानी कि we know everything but we are not able to do, and that is due to stressful life, and that is due to ignorance. So next slide you can see, according to me, the only thing which is required, and that is knowledge. So knowledge is the key to health and success. आपको सक्सेस के लिए भी नॉलेज और हेल्थ के लिए भी नॉलेज ही काम में आने वाला है। एंड नाउ डेज अगेन आई फील सैड समटाइम कि हमारे भी क्लासेस में जब लोग ज्वाइन करते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड फॉर प्रैक्टिकल्स बट नॉट फॉर थियरीज। हमें लगता है आप ये बातें बताएंगे तो हम बोर हो जाते हैं, है ना? आप कुछ करवाइए, हमसे प्रैक्टिस करवाइए, कुछ आसन बताइए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताइए, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड। आई नो ये एंथुसियाज्म अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल से नहीं होता, बिकॉज अगर उसके थ्योरीज को हम जानेंगे तो हर वो प्रैक्टिस आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। विद द मोर अप्रोप्रिएट यू विल प्रैक्टिस, द मोर अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स यू विल गेट। So now we will try to get some knowledge which is related to this situation with our next slides. तो अब मैं आपसे थोड़े से स्टैटिस्टिक्स शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि हमें ये पता चले कि ये हेल्थ जो है वो बहुत कुछ ऐसे माइनर है, ऐसा नहीं है, इट्स अ वास्ट थिंग। हमें बहुत बड़े लेवल पे इसे सोचने की जरूरत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ। एजुकेशन, अगर आप ये यूथ के देखेंगे, हम खास मैंने कुछ पॉइंट्स आज यूथ के लिए यहाँ पे रखे, बिकॉज आई रियली वांट आवर यूथ टू बी मोर एक्टिव फॉर द हेल्थ एंड द प्रोग्रेस।
वो थोड़ा थोड़ा सा लेथार्जी की तरफ जा रहे हैं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप अपनी हेल्थ को और अपने प्रोग्रेस को एक प्रायोरिटी दें, एंड देन सी योर लाइफ एंड सी हाउ यू फुलफिलिंग योर ऑल द agendas. You can see that. So आप इसमें एक छोटा सा एक लाइन आप देख सकते हैं, no country can afford to ignore its youth. There is a line you can read there. No country can afford to ignore its youth. कोई भी कंट्री अपनी यूथ को इग्नोर नहीं कर सकता. इंडिया इज अ यंग नेशन in the sense that share of its youth in total population in 2011 stand 34.8%. यानी कि इंडिया एक यूथ के नेशन, यूथ नेशन के नाम से जाना जा रहा है. और एक बात वहां पे आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ये स्लाइड का रीजन इज दैट young ones when nourished properly can grow like huge redwood tree. But this thing I just want you to keep in mind, but if not controlled or neglect can erupt like volcano. Now you see, youth is the energy. ये energy needs a direction. अगर उन्हें proper direction और ये सारी चीजें मिलती है तो they can do their miracles in their life. पर अगर they will not get that appropriate source and energy, that same energy will divert into negative things. And you can see that. उसके लिए भी कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. तो डीप कुछ बातें भी हम समझ रहे हैं, और हम सुपरफिशियल लेवल पे भी आने वाले हैं कि हमें आई डिसऑर्डर के लिए क्या करना चाहिए, बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए. दैट आल्सो आई विल शेयर विद यू. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर यू सम डीपर थिंग्स अबाउट योगा एंड हेल्थ. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे. एंड यू कैन सी अबाउट youth. I would like to share that it's crucial to understand health problems of this age, processes and the mechanism that affect their health. धीरे धीरे से मैं बहुत सारे कॉलेजेस में आई गो फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड लेक्चर्स एंड ऑल, तो मुझे पता चलता है कि हमारे यूथ जो है बेचारे सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, किसी को बैक पेन है सीवियर, किसी की डाइजेशन प्रॉब्लम है. In this age, if we are facing problems like that, so what are we expecting from our life for in the future? तो मैं सभी से वही कहना चाहता हूँ कि never ignore your health, be healthy and strong to achieve all your goals. तो अब फिर भी हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम जो कॉमन आज यूथ फेस कर रहा है, दैट इज ओबेसिटी, ओवरवेट, स्ट्रेस, डिप्रेशन. आजकल यूथ के रिलेशन बड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो रिलेशन कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन का हेल्थ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है. ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी सी समझेंगे. तो ओबेसिटी is the common problem faced by nowadays in our youth, and overweight, stress, depression, undernutrition is also there. आजकल हम जंक फूड पे ज्यादा है, तो न्यूट्रिशन, पेट तो भर रहा है लेकिन जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो कभी कभी नहीं मिल पा रहा है. लैक ऑफ कंसंट्रेशन वो तो बहुत ज्यादा है. बेचारे हमारे क्लास में टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे कंसंट्रेशन की कमी की वजह से, बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेशन रेशियो आल्सो, आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज सीन इन आवर यूथ नाउअडेज. ग्रास्पिंग पावर एंड द क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें कॉमन प्रॉब्लम बनते जा रही है हमारे यूथ के. सो आवर यूथ इज फेसिंग स्ट्रगल. ओके, नेक्स्ट. तो ये सारी चीजों को अब हम थोड़े से स्टैटिस्टिक की ओर चल रहे हैं, जो मैं आपसे जरूरी समझ रहा हूँ शेयर करना. तो देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड प्रिवेंटेबल डेथ्स. प्रिवेंटेबल डेथ्स यानी कि जो डेथ होने नहीं थे लेकिन वो प्रिवेंट किए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं किए गए, इसलिए डेथ हुआ. तो वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी हैज नीयरली ट्रिपल्ड सिंस 1975. आप सोचिए, पहला एक जमाना था कि लोगों को खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो मृत्यु और डेथ होते थे. अब ऐसे होते जा रहा है, ओवरवेट की वजह से भी लोगों के डेथ हो रहे हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन, ट्रिपल, यानी कि 39% ऑफ एडल्ट एज 18 इयर्स एंड ओवरवेट इन 2016. यानी कि 18 साल के आसपास के जो एज ग्रुप है उनके 39% इज ओबेस्ड. राइट. तो आपको मैं जनरल एक बता रहा हूं कि हम एक उसको सुपरफिशियली आज हम नहीं देख रहे, थोड़ी कुछ चीजों को डेप्थ में जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं. और ओवर 340 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एज 5 to 19 वर ओवरवेट और ओबेज इन 2016. ये तो फिर 4 साल पहले के स्टेटिस्टिक है. अभी आई डोंट नो क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा या ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ओबेसिटी इतना, और ये ड्यू टू दिस ओबेसिटी मेनी डेथ्स आर देयर. तो वो कैसे रिलेटेड है थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे समझने की. नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, द सेकंड प्रिवेंटेबल डेथ इज ड्यू टू हाइपरटेंशन. द ब्लड प्रेशर वाज रिकॉर्डेड इन अराउंड 1,80,000 इंडियन एडल्ट्स. तो आज लगभग हम देखेंगे तो 1 in 5 यंग एज इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन.
सो मैं हमेशा वही सोच रहा हूँ कि व्हाट आर वी डूइंग, हमारा ध्यान कहाँ है। इतनी सी एज में अगर हम ओवरवेट हो जाएंगे, हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, तो कैसी सारी आगे के लाइफ के सारे स्ट्रगल और अचीवमेंट्स हम कैसे कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं हार्ट डिजीजेस। सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, अगर हम देखेंगे तो नियरली 24.8% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया आर एट्रिब्यूटेबल टू सीवीडी, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं इन दिस एज। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द डायबिटीज। So diabetes is the increased tenfold. Diabetes to itna, you know, the cause of diabetes, there are many causes, but the major cause, you know, that is the lifestyle and stress. और ऐसे कहा जा रहा है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट। तो ये खुशी की बात है क्या? जस्ट एक बार पूछ लीजिए आप खुद को, व्हाट इज द मैसेज वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड, कि इंडिया इज मोर स्ट्रेसफुल एंड नॉट गुड लाइफस्टाइल। दिस इज द मेजर कॉज सेट फॉर डायबिटीज, राइट। तो ये कुछ चीजें, देखिए डायबिटीज के और भी बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टुडे इन द डीपर थिंग्स अबाउट द डिजीजेस, बट जनरली आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल इज आल्सो कॉजिंग मेनी डिजीजेस, ओके। सो इस तरह से हम देखेंगे तो काफी सारे 77.2 मिलियन पीपल इन इंडिया आर सेड टू हैव प्री डायबिटिक्स। हमारा एक स्पेशल वर्कशॉप था डायबिटीज का, सिलेक्टेड वी वर देयर इनवाइटेड, तब मुझे ये पता चला कि ये जो स्टैटिस्टिक है वो तो डिटेक्टेड डायबिटीज पेशेंट्स के थे, लेकिन ऐसा मानना है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं आज जिनको खुद को पता नहीं कि वी आर डायबिटिक। कब पता चलता है? व्हेन वी गो फॉर वीजा, व्हेन वी गो फॉर इंश्योरेंस, फॉर मेडिक्लेम एंड ऑल दिस थिंग, तब उन्हें पता चलता है बहुत बार कि मुझे भी डायबिटीज है। तो ये अनडिटेक्टेड डायबिटिक पेशेंट्स आर, एंड वी डोंट नो हाउ मेनी आर देयर। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड देन वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द टाइप्स ऑफ क्राइम। आपको लगता होगा कि हम आज कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन आई विल ऑल दिस समराइज एट द एंड, डोंट वरी। तो एक तो बीमारियां मैंने आपको बताई किस तरह से बढ़ रही है, और एट द सेम टाइम मैंने देखा ड्यू टू आवर माइंड। मैंने अभी अभी आपको कहा ना स्टार्टिंग में कि अगर यूथ को बराबर एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन बराबर हुआ तो यू कैन डू मिरेकल इन योर लाइफ। और अगर वो नहीं हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया नेगेटिवली, तो व्हाट विल इंक्रीज? क्राइम। एंड दैट इज आल्सो वी आर सीइंग। हमें बहुत बार आपको लगता होगा कि आप हमें क्यों इतनी ये सारी बातें, हम थोड़ी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट जो भी कोई कर रहा है वो इसी एज में कर रहा है ना, यानी कि उन सभी तक ये बातें जाना तो जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन सी कॉम्बिनेबल दिस क्राइम्स इंक्लूडिंग रेप, मर्डर एंड थेफ्ट, एवरीथिंग इज देयर, और वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं अगर आज हम फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आगे हम जो चाहते हैं प्रोग्रेस एंड all the happy life, how can we achieve that, right? So, and 32,24,000, you can see the this thing, आप देख सकते हैं वहां पे कितना ये है, 161 स्पेशल एंड लोकल लॉ क्राइम्स आर देयर रिकॉर्डेड। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स। आजकल साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक तो हमारा फिजिकल हेल्थ और ये मेंटल हेल्थ, ये दोनों को कंबाइन करके डेवलप करने का ही नॉलेज इज ऑफ योगा नॉलेज। And then you can see in the next slide there's a depression nowadays, सभी जानते हैं, और इस डिप्रेशन की वजह से नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द सुसाइड डाटा, सुसाइडल केसेस। एंड अब उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन यू कैन जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, 8 lakh people die due to suicide every year, which is 1 person every 40 seconds। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे मेंटल स्टेट कैसे होते जा रहे हैं, कितना हम फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं कि हम अपनी लाइफ से इतना परेशान हो जा रहे हैं कि वी आर रेडी टू गिव अप। सो दिस द गिव अप मेंटालिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इवन यू कैन सी द ग्राफ, 30 to 59 इयर्स के जो एज ग्रुप में ज्यादा सुसाइडल केसेस के रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट, सो द यूथ एंड सक्सेस। तो फाइनली थोड़ा सा मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया कि जनरली अभी किस तरह से ये सारा माहौल है, और अगर हमारे यूथ को सक्सेस करना है, बिकॉज बेसिकली आई एम फोकसिंग यूथ एज वेल राइट नाउ, आगे जाके हम बाकी की भी चीजों को कवर करेंगे। तो आप देखिए कि अगर योग एंड यूथ ये दोनों मिल जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज सक्सेस, एंड हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स। तो सबसे पहले आप देखिए तो वहां पे ऑब्स्टेकल्स है। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है? डिजीज, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस, क्राइम, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिस ऑल आई कंसिडर एज ऑब्स्टेकल, राइट? डिजीज, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस,
crime, anxiety, stress, depression, and less responsive to many important aspects. हमारे यूथ में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो बहुत बार उस पर हम रिस्पॉन्सिव ही नहीं है. एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ये सारा अगर है तो एक ये जो है ये यूथ के सारे ऑब्स्टिकल्स है. तो हम with the help of yogic knowledge we can come out of all these obstacles. And the progress अगर हम चाहते हैं तो what is required as holistic health, calmness of the mind, non-violence, good things for society, stress-free, more responsible towards everything, positive and constructive youth. तो आई होप कि आप सभी भी एग्री कर सकते हैं कि जो प्रोग्रेस के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो होने चाहिए. एंड डेफिनेटली दैट योगिक नॉलेज कैन गिव दिस, राइट. हम सिर्फ योगा को एक सुपरफिशियली नहीं ले रहे कि सिर्फ उसका एक्सरसाइज फॉर्म देखना है या उसके सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस देखने हैं रिलेटेड टू लंग कैपेसिटी ऑल. उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल पार्ट हम पहले देख रहे हैं एंड देन वी विल गो टू द फिजियोलॉजिकल पार्ट. सो नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी तो एग्जैक्टली व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज हेल्थ. आप में से कोई एक या दो जन अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. व्हाट इज एक कोई आप में से कोई एक जन बताए व्हाट इज योगा और एक जन आप में से कोई बताए व्हाट इज हेल्थ according to you. Anyone? Just unmute and share. What is yoga and what is health? Yeah. Waiting for the reply. Sir, according to me, health can be like its absence of disease. Okay, right. Good try. I was expecting the same. And what is yoga? About yoga? कुछ तो सुना होगा आपने about yoga. Something maybe you've heard about yoga, good for health or good for lungs, anything. और कुछ इससे बड़ा भी सुना होगा आत्मा परमात्मा like something. Anyone? Yeah, try कीजिए. Just attempt. After hearing the word yoga, the only thing which comes in mind is like calmness, like stress नहीं है बस ऐसा. Yes. यानी कि calmness, right? यानी कि yoga can be related with the calm mind, right? Okay. So let's see. तो पहले हम देखते हैं what is health, right? तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम देखेंगे सी अकॉर्डिंग टू बाकी मॉडर्न साइंस और हम सब देखेंगे तो आपका जो पहला वाला रिप्लाई था दैट वाज राइट कि एब्सेंस ऑफ डिजीज कैन बी टर्म्ड एज हेल्थ. कि मुझे आज किसी प्रकार की बीमारी नहीं है तो आई कैन से आई एम हेल्दी. बट हमारे जो पहले के एंशिएंट टेक्स्ट का क्या कहना है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. उनका कहना है कि अगर आपके अंदर सिम्टम दिखने लगते हैं जब आपको लगता है कि अब मैं हेल्दी नहीं हूं, before that symptom something already has started imbalance in our body, right? अब वो imbalance already यानी कि अंदर कोई तकलीफ शुरू हो चुकी थी और उसको symptoms तक आने के लिए एक समय लगता है और symptoms आने के बाद हमें पता चलता है कि I am unhealthy now. But Ayurveda is giving a definition कि जिसमें हम पहले भी जान सकते हैं उसके जनरेशन के वक्त कि I have started being unhealthy. तो वो थोड़ा सा हम देखते क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, राइट. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर इज अ वेरी गुड श्लोका समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थे इति अभिधीयते. अब ये श्लोकास में ज्यादा नहीं रहेंगे, मतलब वो कंफ्यूजन ना हो आपको, टंग ट्विस्टिंग हो जाता है कभी कभी. बट उनका कहना क्या है, व्हाट आयुर्वेदा सेज समदोष, सी दोषास आर द एनर्जीज, एक प्रकार से फंक्शनल एनर्जीज जो हमारे अंदर है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. हम उसमें अब डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे. तो संस्कृत फॉर हेल्थ इज स्वस्थ is an Ayurveda term used to refer to the state of being in which body, mind, soul and senses are in blissful equilibrium. Okay, swastha is determined primarily by assessing balance between the three doshas which are functional energies, the seven dhatus which are bodily tissues, Agni, digestive fire or digestion, entire the function of digestion, and the pathways of elimination. अब थोड़ा सा उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि त्रिदोषा एक एनर्जी है जिसके माध्यम से शरीर की एक्टिविटी चल रही है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. एंड देयर आर सेवन धातुस. धातु वी कैन टर्म एज बॉडीली टिश्यूज.
मतलब धातुस को हम टिश्यूज से कंपेयर कर सकते हैं। एंड डाइजेशन, यानी कि हमारे टिश्यूज अगर बराबर है, हमारे एनर्जी जो अंदर है वो बराबर है, और डाइजेशन बराबर है, एट द सेम टाइम एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन भी बराबर हो रहा है। बिकॉज आप सभी जानते होंगे, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड यानी हेल्थ से रिलेटेड किसी इसमें मेडिकल या कुछ है, तो आजकल ज्यादा से ज्यादा जो समस्या है दैट इज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ही नहीं होता, ऑलवेज इट्स स्टक, राइट। तो ये सारी चीजें तो एक वो उन्होंने साइन बताया, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने की इच्छा है, वो कहते हैं कि प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः, द लास्ट लाइन इज प्रसन्न आत्मे इंद्रिय, यानी कि आप कंप्लीटली एक प्रसन्न, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है जो सूदिंग है, यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल एंड सूदिंग लाइफ। अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर चिड़चिड़ हो रही है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दीज आर द साइन ऑफ इम्बैलेंस इन द हेल्थ। तो वो कहते हैं कि तभी से आप ध्यान देना शुरू करें, वेट ना करें कि वो स्ट्रेस के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद कोई ना कोई ऑर्गन का जो फंक्शन है वो उसका फंक्शंस बिगड़ने लगने के बाद सिम्टम क्रिएट होंगे, एंड देन वी स्टार्ट डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग। तो वो कह रहे हैं कि यू कैन जस्ट पे अटेंशन एट द रूट, बिकॉज दिस एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस इज गोइंग टू develop imbalance in hormones in a way, and that imbalance in hormone will disturb the functioning of any organ हो सकता है, and that organ का efficiency अगर बिगड़ गया तो वो फिर organ can be anything, अगर liver कोई तकलीफ हो गई तो liver से related कुछ बीमारी हो सकती है। तो ऐसे एक आयुर्वेदा का टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा हमने समझा। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपसे कहता हूँ और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, कुछ थोड़ी सी लास्ट ऐसी कुछ डीपर बातें हैं, फिर हम थोड़ा सा हमारे नॉर्मल जो हमें एक्सपेक्टेड है उस पर भी हम आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि योगा एक्चुअल क्या है ये थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूं। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा, कि योग जो मैंने आपको कहा, पतंजलि ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है दैट इज 195 सूत्र, उसका जो फर्स्ट सूत्र है दैट इज अथ योगानुशासनम, और आई जस्ट लाइक यू टू रिपीट आफ्टर मी, दैट इज अथ योगानुशासनम, जस्ट ट्राई। Atha Yoganuशासनम. Now see, the first line of that book, the ancient text is Atha Yoganuशासनम. So Atha means now, Yoga means yoga, Anushasan means teaching or discipline. Okay? यानी कि first line of this text is saying now the discipline of yoga, now the teaching of yoga will begin. This is the first sutra of the ancient text. This introductory sutra suggests that after our many actions in life and whatever preparatory practices we might have performed, now we are finally ready to pursue the depth of self-exploration. Discipline and learning. To practice yoga requires cultivating discipline and following a systematic method of learning. तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ यानी कि अब, योग यानी कि योग, अनुशासन तो योगिक यानी कि एक प्रकार का डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ, राइट। तो फर्स्ट योगा लाइन इज फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन की ही कमी है, जो हम फर्स्ट इससे शुरुआत कर सकते हैं। और ये सूत्रों का और एक ब्यूटी है कि एक सूत्र का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, और इसी सूत्र से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भी अभी आप बता रहे हो नाउ अब से हम योगा के डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो व्हाट इज योगा? तो पतंजलि हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज नेक्स्ट सूत्र व्हाट इज योगा। तो नेक्स्ट सूत्र इज अथ, नेक्स्ट सूत्र आप देख सकते हैं दैट इज योगस चित्त वृत्ति निरोधः। ये कुछ चीजें आप जान लें, आपको कैसे भी लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चाहता हूं कि योगा एग्जैक्टली क्या है वो आप सभी तक पहुंचे। तो अब पहले सूत्र में उन्होंने बताया कि योग, अब से योग का अनुशासन यानी कि नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। अब हमारा क्वेश्चन आया राइज हुआ कि वी आर रेडी टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ योगा, बट व्हाट इज योगा? तो नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग अस व्हाट योगा मींस। योग चित्त वृत्ति निरोधः। सी, चित्त यानी कि हम कह सकते हैं कि मन, वृत्ति इसका मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ आवर माइंड, यानी कि हमारे अंदर जो विचलितता है, कंटिन्यूअसली यू कैन सी आवर माइंड इज विवरिंग, हमारे अंदर एक स्थिरता नहीं है एक जो माइंड के अंदर। अब आप सोचिए, अब तक जो हम योग समझ रहे हैं दैट इज ओनली एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, बट व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन गिवन इन टेक्स्ट इज टू
आपके मन का नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग द माइंड इज योगा, राइट? एंड दैट इज द मेन रूट कॉज फॉर एवरी ट्रबल इन आवर लाइफ. तो योगा इज टू कंट्रोल द मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड or functioning of the mind. It means that yoga is the removing of fluctuation of mind. Yoga is the settling of the mind until it rests in a state of total utter tranquility, so that one experience life as it is. phrase यानी कि जस्ट 3 शब्दों में 3 वर्ड्स में उन्होंने पूरी योगा को एक्सप्लेन किया है कि योगा का जो मेन रीजन इज टू काम यानी कि जस्ट टू साइलेंस योर माइंड. दैट इज योगा. अब उसके लिए बहुत सारी बातें उन्होंने आगे बताई है. तो लास्ट एक सूत्र मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ और फिर थोड़ा सा हम आगे अलग टॉपिक पे चलेंगे. अब देखिए, पहले हमने समझा कि डिसिप्लिन ऑफ योगा, फिर हमने देखा कि योगा का मीनिंग इज व्हाट, जस्ट टू काम डाउन योर माइंड, कंट्रोलिंग द माइंड एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड रादर, राइट? अब ऐसा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम कंट्रोल ऑफ माइंड यानी कि जो मॉडिफिकेशन का कंट्रोल हम कर भी लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? फिर से फायदा क्या है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट? So that he is explaining in his third sutra, that is tada drishtu swarupe avasthanam. So that means after, मतलब हमारे मन को पूरी तरह से नियंत्रण करके स्थिर जब हम करते हैं, तब हम हमारे ओरिजिनल स्टेट में आते हैं. अब नॉर्मली आप देखिए, हम सभी अंदर से बहुत एक ब्यूटी हम सभी के अंदर है, जो इस थोड़ी थोड़ी से वो कम होती जा रही है. तो एक ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड तक हम जाते हैं. दैट इज the state of mind which is completely calm. तो ऐसा उन्होंने 3 सूत्रों में पहले तो योगा को एक्सप्लेन किया, राइट? चलिए नेक्स्ट. तो ये बहुत डीप सारे फिलोसॉफी से तो ज्यादा हम नहीं जाएंगे, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ. सो मेनी स्टूडेंट फाइंड दैट योगा हेल्प्स विद कंट्रोलिंग इमोशंस. तो ये जब हम कंट्रोल सीख जाते हैं योगा से, तो व्हाट बेनिफिट वी आर गेटिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा? दैट हेल्प्स कंट्रोलिंग आवर इमोशंस, बिकॉज इमोशन से एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड बाकी की सारी तकलीफें शुरू होती है. increases the ability to deal with situations that are frustrating, as it improves strength, flexibility and balance in our life. So balances the hormones and improves blood circulation. So with the help of practice, these all things we can experience after practicing yoga. Balances mood swings. आजकल आप देखिए mood swings बहुत अचानक से हम बहुत खुश है, फिर अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये सारे अंदर ही अंदर हम ऑर्गन्स और हार्मोन्स पे उसका क्या इफेक्ट होता है, ये हम बाद में कभी समझ सकते हैं. So mood swings, energy and stress levels, improves mindfulness, awareness and focus. These all you can experience with the practice of yoga. Increases confidence, self-esteem and acceptance. Improves creativity, discipline and attention. So whatever is important, we all get with the practice of yoga. अब next हम थोड़ा सा स्लाइड पे देखते हैं, that is called obstacles might be. देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है. अब आप देख सकते हैं कि आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपके आगे सक्सेस है, लेकिन बीच में हम कहाँ नीचे गिर रहे हैं? दैट इज ऑब्स्टेकल्स. हमारे लाइफ में जब भी हम कुछ प्रोग्रेस करने की शुरुआत करते हैं, तो कुछ ना कुछ अड़थड़े यानी कि ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आते हैं, और हम ज्यादातर उन ऑब्स्टेकल्स में उलझ के रह जाते हैं और आगे हमारी प्रोग्रेस हम नहीं कर पाते हैं. और ये जो ऑब्स्टेकल्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ, दे आर रिटन इन एंशिएंट टेक्स्ट, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है. एक बड़ा सा सूत्र है, मैं अभी जो आपसे शेयर कर रहा हूं, तो डोंट वरी अबाउट इट. उसमें से कुछ छोटी सी बातें हम समझने वाले. तो देयर आर 9 टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स रिटन इन द ग्रंथ, और जो अब तक एप्लीकेबल है. दैट इज व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया. अब ये भी बड़ा सा सूत्र है. तो मेन फर्स्ट जो उन्होंने बताया है ऑब्स्टेकल, दैट इज व्याधि. व्याधि मीन डिजीज. नाउ आई जस्ट वांट यू टू फोकस कि हमें जब कुछ बीमारी होती है, तो हम उसको अलग ढंग से लेते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका जो व्यू पॉइंट था, दृष्टिकोण क्या था, कि दिस डिजीज इज योर ऑब्स्टेकल इन योर प्रोग्रेस. तो सी द डिजीज एज द ऑब्स्टेकल इन योर प्रोग्रेस. तो व्याधि स्त्यान. सेकेंड ऑब्स्टेकल इज स्त्यान. संस्कृत में स्त्यान का मीनिंग होता है मन का आलस. मन का, हमारा जो मन है वो आजकल ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, वो आलस में, लेजी है. वो हर एक चीज बाद में, अभी आप सुनना भी कभी कभी कठिन हो जाता है कि क्या है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है. ऑलवेज आवर माइंड इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी टू अडॉप्ट एनीथिंग न्यू. सो दैट इज कॉल्ड स्त्यान.
तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उन्होंने योग में बताए हैं जिन पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो वी कैन नाइसली प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि योगा में अभी क्या क्या इंक्लूडेड है। एंड वन मोर थिंग वी कैन सी व्हिच इज मेंशन्ड इन द योगा टेक्स्ट, दैट इज योगा कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे 10 गुड गाइडलाइंस आर गिवन इन योगिक टेक्स्ट। अब उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अ व्हाइल मेनी ऑफ अस मे वंडर इफ देयर इज मोर टू इट देन व्हाट वी डू ऑन द मैट। यानी कि हम मैट पे सिर्फ जो एक्सरसाइजेस वाला पार्ट करते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ योग में है जो धीरे धीरे से हमें समझना आवश्यक है। दैट इज कॉल्ड यमास एंड नियमास। तो यमास आर सोशल डिसिप्लिन एंड नियमास आर सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये सारी बातें कभी कभी सुनने में हमें कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आई डोंट नो, बट दीज आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रूल्स यानी कि सोशल गाइडलाइंस आज से हजारों साल पहले उन्होंने बताया है, बहुत अच्छे सोशल गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छे खुद के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। तो देयर आर 5 यमास, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अब उसके एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो पांचों जो यम है अगर हम उन्हें समझते हैं और फॉलो करते हैं तो यू कैन रियली ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ। And there are 5 niyamas, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो 5 नियम उन्होंने बताए अपनी प्रोग्रेस के लिए। उसमें से फर्स्ट इज शौच, एंड शौच मींस हाइजीन। उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देयर आर 3 टाइप ऑफ शौचास, क्लींजिंग। तो शरीर के अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि और मन की शुद्धि। तो ये सारे डीपर पार्ट्स ऑफ योगा हैं जो कभी हम बाद में समझेंगे, बट ये जो यमास और नियमास रियली कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जो हम बाद में समझ सकते हैं। नाउ we will come to a regular yoga। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम जो जानते हैं that is called आसना। ठीक है, आसना यानी कि ये दिस इज द पार्ट विच वी नो ज्यादातर, कि मैं बैक पेन है तो कौन से आसन करने चाहिए, डाइजेशन डिसऑर्डर है तो कौन से आसन करने चाहिए। अभी तक का जो पहले वाला पार्ट था वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है और हम में से बहुत जनों का इंटरेस्ट हो सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम हियर एवरीवन लाइक्स योगा का ये वाला पार्ट। तो इसमें बहुत सारे आसन हैं जो आप सीख सकते हैं और उनके अलग अलग आसन के अलग अलग ऑर्गन्स की फंक्शंस पे उसकी इफेक्ट है। तो asanas is a posture. There are innumerable postures your body can take. Among these, certain postures have been identified as yoga asanas. So yoga means that which takes you to a higher dimension of your health. So kind of posture which leads you to higher possibilities of health. That is called yoga asanas. Asana is the proper term for that. ओके तो बहुत सारे आसन हैं जिसमें हम स्ट्रेचिंग कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप जस्ट जहां पे भी बैठे तो खड़े हो जाइए। आई जस्ट वांट यू टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो जस्ट आप खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद जस्ट कुछ स्ट्रेचिंग करने हैं और कुछ मेरे आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताने हैं। तो लेट्स ट्राई। ओके, आपका किसी का वीडियो ऑन कर सकते हैं, एटलीस्ट आई कैन सी आप बराबर कर पा। हाथों को फिंगर लॉक कीजिए। देखिए फिंगर लॉक करें एंड इनको हाथों को ऊपर लेके जाए, राइट, ऊपर लेके जाए। अब पैरों को जमीन पे ही रखें जैसे है, एंड नाउ जस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ। Stretch, completely stretch up and just observe the stretching effect. Stretch and then relax, relax. Again stretch, again stretch, again relax. One more time stretch, relax. अब stretch करते हुए turn to your left. Straight, then right. Straight, right, left. One more time, straight, right. One more time, left, without jerking, right. Okay, now bring your hands down. नीचे लाएंगे हाथों को। अब हाथ स्ट्रेट करें शोल्डर लेवल पे और ट्विस्ट करें, मैक्सिमम ट्विस्ट जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। एंड देन अगेन स्ट्रेट, अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड, 2 or 3 rounds, left, right, left, right. Okay, relax. अब दोनों हाथ स्ट्रेट। नाउ यू हैव टू डू साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में आपको सिर्फ लेफ्ट साइड नीचे जाना है और स्ट्रेट, एंड देन राइट साइड जितना नीचे जा सकते लेके जाए। कोशिश करें कि आपका हाथ आपके पैर को टच हो सके। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट राइट। ओके, आप थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये ऐसे पैर पकड़िए आप, आप ऐसे पकड़ते हुए जितना स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट करें। ओके, हो रहा है? बिकॉज मैं किसी को देख तो नहीं पा रहा हूं। अब सेम विद द अदर साइड यू कैन डू, होल्ड करना है और धीरे धीरे से पूरा नी स्ट्रेट कर और फिर वापस नीचे आना है। ओके ओके, नेक्स्ट वी कैन डू इट, हाथ ऊपर लेके जाने हैं, बैकवर्ड बेंड एंड देखिए फॉरवर्ड बेंड करते वक्त आप ध्यान रखिए हंच ना हो, ये हिप्स जो हिप जॉइंट्स है वहां से हमें नीचे झुकना है एंड डाउन। अगेन आप बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड। ओके, नाउ होल्ड। अब क्या करना है, फिर से फिंगर लॉक करना है, स्ट्रेच अप। अब स्ट्रेच करने के बाद यू हैव टू होल्ड, completely stretch, maximum stretch and hold. 1 2, hold for 10 counts. 3 4 5 6 7 8 9 10. Now stretch करते हुए ही left side, stretch and hold there, hold. 1, completely stretch and hold. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Straight opposite side, stretch and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now keep your hands on your belt like this, and ये जो हाथ है उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसी को बैकवर्ड बेंड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. जस्ट अपने हाथों को इस तरह से ओपन करें और स्ट्रेच करें, कंप्लीटली स्ट्रेच, स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, और धीरे धीरे से मेक अ फिक्स फिस्ट, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, टाइट, कंप्लीटली टाइट। अच्छा ध्यान रखिए फेशियल एक्सप्रेशंस टाइट नहीं, स्माइलिंग, टाइट, कंप्लीटली टाइट। अगेन ओपन द फेस, स्ट्रेच, कंप्लीटली स्ट्रेच, ये ऐसे स्ट्रेच करना है, उंगलियों को सिर्फ, हाथ सामने ही रखेंगे, फिर मेक अ फिस्ट, अब अंगूठा बाहर, टाइट, पूरा टाइट, कंप्लीटली टाइट, टाइट एंड टाइट, then again relax and stretch, fingers out, or stretch, and then again fit, right? Okay, ठीक है, now take your seat. तो ऐसे काफी सारे आसन हैं, ये तो जस्ट हमने लूजनिंग प्रैक्टिस हमने किया है, जैसे कि सर्वांग आसन इज वेरी गुड फॉर थायराइड ग्लैंड, धनुरासन इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, भुजंग आसन इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, यानी कि जैसे कि कुछ बैक पेन वगैरह काफी जो चीज हैं, तो ऐसे बहुत इन नंबर ऑफ आसनास आर देयर व्हिच आर वेरी इफेक्टिव फॉर आवर हेल्थ। अब इन आसनों में देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है ट्रेडिशनल स्टैटिक, यानी कि जिसमें हम आसनों का प्रैक्टिस धीरे धीरे से कर रहे हैं, स्लोली, ओके, हर एक मूवमेंट को विदाउट जग कर रहे हैं, धीरे से जा रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं, यानी कि अगर हम साइंटिफिकली समझेंगे तो वी हैव 2 मसल्स, राइट मसल, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर, राइट। तो स्लो हमें मूवमेंट करना है, और दूसरा होता है डायनामिक, वेयर वी परफॉर्म ऑल द आसना विद अ सर्टेन स्पीड। तो ये हमें देखना होता है कि आपका यानी कि प्रैक्टिस करने का रीजन क्या है, what we are expecting from our practice. So according to that, we have to suggest which one is appropriate for that individual, static practices or dynamic. Okay, तो ये थोड़ा सा हमने आसनों के बारे में देखा। Now quickly we will see about pranayam, breathing practices. तो मैंने से आपको कहा मेनी आसनास आर देयर, मतलब बहुत प्रॉपरली, यानी कि योगा थेरेपी का अलग सा सेगमेंट भी है जो भी हम कभी डिस्कस करेंगे कि आपकी कोई एलिमेंट्स है तो अकॉर्डिंगली आपने कौन से स्पेसिफिक आसन करने चाहिए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अब प्राणायाम टेक्स अस टू द थ्रेशोल्ड ऑफ कंट्रोलिंग माइंड। सी आजकल हम प्राणायाम को, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को लंग कैपेसिटी और ब्रीदिंग के जो तकलीफ हैं उनके लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन
अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट की अगर बातें देखेंगे तो प्राणायाम इज रिकमेंडेड टू कंट्रोलिंग द माइंड। अब कैसे होता होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको कभी किसी को गुस्सा आया है आप में से कि नहीं आया? क्या लगता है, किसी को आया गुस्सा आज तक? आप बोलेंगे किस दिन नहीं आया वो पूछिए, रोज आता है गुस्सा, बार बार आता है ना? किसको ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप में से? ये ऐसा सवाल है कि कोई जवाब देना भी कठिन है। okay. नहीं सर, आता है अभी के गुस्सा। बाद आप नोटिस, हाँ, और वो गुस्सा परेशान यानी कि क्या होता है, ऐसे कुछ हमसे हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अब की बार अगर कभी गुस्सा आए आपको तो यू जस्ट ऑब्जर्व, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हाफ ने जितना बड़ा झगड़ा होगा, जितनी बड़ी चिड़चिड़ ज्यादा होगी, उतना आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ता है, और जितना आप काम डाउन होंगे उतना आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो कम होता है। यू नो व्हाट इज द आइडियल ब्रीदिंग रेट? रेस्पिरेटरी रेट कितना है आपको पता है? किसी को रेस्पिरेटरी रेट, जैसे कि पल्स रेट होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट कितना है? एनीवन? कोई बता सकता है? अच्छा चलो चेक कर लेते हैं क्विकली, आप मुझे मैसेज कीजिए। ओके, 1 मिनट का मैं आपको टाइम यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। नाउ जस्ट गेट रेडी, we'll have a little 1 minute practice। तो मैं आपको कहूंगा स्टार्ट, तो ब्रीदिंग तो स्टार्ट ही है आपका, वो स्टॉप नहीं है और करना भी नहीं है। ये तो जस्ट स्टार्ट काउंटिंग, इनहेल एक्सहेल 1 एंड अगेन इनहेल एक्सहेल 2, राइट? मैं आपको कहूंगा स्टॉप, यानी 1 मिनट हो चुका है, तो आप सिर्फ काउंट कितना मुझे क्विकली मैसेज करें। चलिए, रेडी? जस्ट एनीवन रिप्लाई मी, रेडी? Yes sir. Ready to count? Yes, sir. Okay, so start. Yes. Back straight, close your eyes. Just be aware of your breathing with complete closed eyes. Now start counting. Keep counting. Stop. चलिए क्विकली मैसेज, कितने थे काउंट इन दिस 1 minute? Yes, 14. Okay. Shubhangi ji. Okay, 14, 15. Gaurav Pandey, 15. Okay, 16, 11, 13, 13. Very good. 15, 14. Okay, nice. Good. Good to see you all have attempted. 16. Very good. 12. 13. Nice. 18. Okay. 17. Okay, let me explain now. Okay. So अभी आपने देखा कि हमारे जो काउंट है that is between 12 to 18 and that is very good count. I can see आप सभी by chance एक अच्छे state of mind में है अभी, because अब के बाद आप चेक कीजिएगा, जब भी आपका frustration हो तो आपका breathing rate will be probably more than 20 because oxygen requirement increase हो जाता है when we are agitated. और जब आप काम डाउन है, दिस इज अ साइन कि अभी आप शायद अच्छे काम रिलैक्स पोजीशन में है, इसलिए सबके आपके जो काउंट है दैट इज अराउंड 12 to 15 बिकॉज द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 18। अगर हम 12 to 18 के रेंज में है तो यानी कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे हम मेकआउट कर सकते हैं। और यहीं पे जब आप एजिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो अगर आपको वहां का जो प्लेस परमिट करता है तो यू कैन डू अ वेरी गुड प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू डू दैट। देखिए, एक होता है फास्ट ब्रीदिंग, तो क्विकली जस्ट स्टार्ट। या गौरव जी, व्हाट इफ +20? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जब 20 के ऊपर जा रहा है तो दैट इज अ साइन कि वी आर मोर इनटू स्ट्रेस, वी आर मोर इनटू थॉट्स, वी आर मोर एंगेज इन आवर थॉट्स। दैट इज अ साइन।
यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि वी नीड अ काम डाउन, you need a little bit breathing practice, you need a little bit meditation, you need a little bit relaxation. That is a sign. Okay, so now today we will learn कि आपको छोटी छोटी सी चीजें कैसे करनी है. Otherwise we can share you the links also where you can get very good breathing practices, very good relaxation techniques as well. तो ये मैंने आपको बताया. ये अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी रेट जो अभी हमने चेक किया. अब आपको मैं और एक डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बता रहा हूं जिसमें हमें क्या करना है, 4 सेकंड तक कंटिन्यूअसली इनहेल करते रहना है और 8 सेकंड तक कंटिन्यूअसली एक्सहेल करना है. गेट इट? गॉट इट? 4 सेकंड तक, लेकिन ब्रेक नहीं, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअसली 4 सेकंड एंड कंटिन्यूअसली 8 सेकंड यू टू एक्सहेल. लेट्स ट्राई. गेट रेडी. आई विल गिव यू द काउंट. इनहेल 2 3 4, exhale 2 3 4 5 6 7 8, right? We will do 5 rounds. Start. Get ready. Back straight. Close your eyes. Start inhalation. Inhale 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale continuously 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Continuously continue. Inhale 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 2 3 4. Exhale 2 3 4 5 6 7 8. Relax. Normal breathing. Open your eyes. अब अगर आपने चेक किया होगा तो अभी हमने जो ये प्रैक्टिस किया वो 1 ही मिनट किया. इसके पहले भी आपने 1 मिनट किया. उस वक्त आपके ब्रीदिंग रेट क्या थे? 12 13 16 18, राइट? 20. अब कितना था? अब हमने जो किया 1 मिनट में, देयर वर 5 राउंड्स. तो टोटल 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस लिया और छोड़ा? 5. और इसके पहले जो 1 मिनट था तब दैट वाज 12 to 18. तो यानी कि इन अ वे ब्रीदिंग कैन कंट्रोल द माइंड, राइट? तो ऐसे कुछ चीजें हम मेक आउट कर सकते हैं कि योगिक प्रैक्टिसेस इमीडिएटली कैसे उसका इफेक्ट हमें हो रहा है. और आप ये प्रैक्टिस अगर रोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग, रोज 5 to 10 मिनट्स मॉर्निंग एंड 5 to 10 मिनट्स इवनिंग, तो यू कैन रियली सी द पॉजिटिव चेंज इन योर स्ट्रेस लेवल. वेरी गुड एक्सरसाइज. तो आप ये छोटा सा एक प्रैक्टिस जरूर आप अपना सकते हैं. बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस है प्राणायाम में, लेकिन दैट नीड्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग. बट ये वाला जो प्रैक्टिस है आप इसी तरह से आराम से रोज कर सकते हैं. ठीक है, तो रोज आप ये ट्राई करें. लेकिन इसके पहले वन मोर प्रैक्टिस यू कैन ऐड, दैट इज कॉल्ड फास्ट ब्रीदिंग. फास्ट ब्रीदिंग यानी कि इनहेल एक्सहेल विद अ सर्टेन स्पीड. पर वो जो प्रैक्टिस है 2-3 मिनट से ज्यादा ना करें. और अगर उसमें थोड़ा सा गिडीनेस लगता है तो जस्ट ड्रॉप दैट. बट अदरवाइज एक 2 से 3 मिनट. लेकिन फास्ट ब्रीदिंग हैज सम प्रिकॉशंस. अगर फ्लक्चुएटिंग हाई ब्लड प्रेशर है, इवन हार्ट डिजीजेस है, ऐसी कुछ तकलीफ है तो आप वो ना करें. अदरवाइज यू कैन डू दैट लिटिल 1 or 2 मिनट्स ऑफ फास्ट ब्रीदिंग. तो उसमें कैसे करना है, यू जस्ट सी नाउ. पहले धीरे धीरे से इनहेल एक्सहेल, देन फास्ट. धीरे धीरे से स्लो, ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली डिक्रीज. लेकिन फेशियल मसल शुड बी रिलैक्स. नहीं तो ऐसे नहीं करना है. जस्ट सिट रिलैक्स एंड डू दैट. चलिए लेट्स ट्राई फास्ट ब्रीदिंग. ओके, अब हो सके तो किसी की वीडियोस ऑन रखें ताकि आई कैन करेक्ट इफ देयर इज एनी मिस्टेक. तो जस्ट स्टार्ट फास्ट ब्रीदिंग. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल exhale. Now increase the speed. Inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, and observe the cleansing effect. Inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, fast. Now just keep on increasing little bit, and now start decreasing the speed and come to the normal breathing and stop. Right? One more time. Let's start again. Inhale exhale, inhale exhale, and start increasing the speed without straining your facial muscles. And now gradually start decreasing the speed and come to the normal breathing. Right, these are the 2 rounds. तो अभी आपको क्या करना है, रोज फर्स्ट यू स्टार्ट विद दिस फास्ट ब्रीदिंग एंड देन डू दैट डीप ब्रीदिंग. जस्ट 5 to 10 मिनट्स, यानी कि ये तो 1 से 2 मिनट ही करना है फास्ट ब्रीदिंग. देन 5 मिनट्स के लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. वेरी गुड, इफेक्टिव एंड द सिंपल प्रैक्टिस विच यू कैन प्रैक्टिस डेली.
ओके, इसके बाद क्विकली हम देखेंगे देयर इज अ अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये 2 फिंगर्स को बंद करें और होठों पे रखें। थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करना है। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, नाउ एक्सहेल फ्रॉम द राइट। नाउ इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. This is the complete one round. Left, inhale from the left, exhale from the right, and then again inhale from the right and exhale from the left. So left to right and right to left will make one round. So let's do 2 rounds. So this is called pranayam mudra. Okay, first 2 fingers लेके और thumb से, अंगूठे से right side बंद करें. Start inhaling from the left first. So inhale from the left, exhale from the right. And inhale from the right and exhale from the left. One more round. Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right and exhale from the left. Okay. Now just check once. आप ऐसे finger लेके यहाँ पर रखें and see from which is predominant, left or right, and quickly tell me. आप ज्यादा कहां से फील कर रहे हैं सांस को, लेफ्ट साइड के राइट साइड? क्विकली चेक। देखिए हम बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हमें 25-30 साल से हम सांस ले रहे हैं ना, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हम सांस एग्जैक्टली राइट से ले रहे हैं लेफ्ट से ले रहे हैं। या ओके, राइट साइड। ओके, यस नेहा जी, राइट, वेरी गुड। लेफ्ट मीत, ओके ओके ओके, कुछ लेफ्ट है कुछ राइट है। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, वेरी गुड। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? भी देखिए किसी का लेफ्ट और किसी का राइट है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? यू कैन चेक। अब कल सुबह उठ के देखेंगे तो शायद चेंज हुआ होगा, आफ्टरनून में देखेंगे तो फिर से चेंज होगा। व्हाट इज द थियरी बिहाइंड दैट? इवन अगर हम मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो देयर इज नथिंग कि आप लेफ्ट से भी ऑक्सीजन है, राइट से भी ऑक्सीजन है, लेफ्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेफ्ट से भी, दोनों जगह से सेम है। लेकिन थोड़ा सा योगिक नॉलेज अलग बताता है, एंड दैट इज एज पर आवर बॉडीज रिक्वायरमेंट दिस चेंजेस आर देयर। Because this is said that right side is giving a warmth effect to the body and left side is giving the cool effect to the body. So according to the temperature and the normal state of body, the requirement changes according to the day, morning, afternoon, evening. So you can see a little change. So this alternate nostril breathing is also equally important if you can practice daily. There are very simple techniques you can use from practice from tomorrow itself. ओके, तो अभी आपके ध्यान में आया फास्ट ब्रीदिंग हमने देखा, और इसके बाद डीप ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। इसके बाद और एक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग। अब आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं तो योगिक ब्रीदिंग में एक होता है एब्डोमेन ब्रीदिंग, जिसमें डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा, एब्डोमेन विल कम आउट व्हाइल इनहेलिंग, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग एब्डोमेन विल इन एंड यू विल एक्सहेल। एंड देयर इज वन मोर ब्रीदिंग विच इज कॉल्ड chest breathing. When you inhale, so the middle lung will expand, and while exhaling, this will go in. And third is clavicular, yani ki shoulder breathing. While inhaling, shoulders will little go up, and while exhaling, it will come down. So these 3 quickly we can practice. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप इतना भी सीख गए आज के सेशन में, तो एक 10 days के प्रैक्टिस में you can really feel the difference and you can share me with that experience of your 10-day practice. So let's start. Let's start 2 rounds for each. So we'll start with abdominal breathing. Okay. So now start inhalation and just give attention on your abdominal muscles. तो धीरे धीरे से सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। 2 rounds. And continuously third round में you will expand the chest part, middle part of the lungs, and while exhaling this will go in. 2 rounds for chest breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. And then 5th and 6th round will be of shoulders, clavicular. While inhaling, little bit shoulders up, while exhaling, little bit shoulders down. तो ये जो योगिक ब्रीदिंग अभी हमने ये जो ट्राई किया, this is to utilize your complete entire lung capacity, lower lungs, middle and upper completely. This is very good breathing technique which you can practice. Just can you tell me what is the lungs capacity in liters or cubic centimeters? Anyone? Normal जब हम breathe करते हैं, inhale exhale करते हैं, तो how much amount we inhale and exhale in liters or cc? Anyone?
Yeah, you should attempt, I think. What is the lung capacity of inhalation and exhalation? How much amount of inhalation we are oxygen in this thing? कितना होता है? कोई जानता है? Sir, अच्छा, आपको एक concept पता है? Yeah. liters. Okay, someone is saying 2,500, someone is 5 to 6 liters. Yes, Shubhangi ji. Okay, yeah, this is the right answer. That is 5 to 6,000 cc also in liters, we can say. That is okay. लेकिन हम कितना inhale और exhale करते हैं in each round? वो पता है हमें? Guess? In single inhalation and exhalation, how much amount we inhale and exhale? That is around 500 to 600 cc only. यानी कि 10% of lung capacity we are actually using. So when we regularly practice this breathing practices, तो हमारे जो lungs हैं, they are more into the improve their functions, right? So better inhalation and exhalation will be there, and that is, I think, I can understand. You can understand that is directly connected to the immune system. तो ये थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंस बताने का कोशिश किया आपको कि किस तरह से छोटे छोटे सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है बहुत ही इफेक्टिव है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। यानी कि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से दो बातें होती है, एक तुम्हारा माइंड का जो स्ट्रेस लेवल कम करना, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ जाना, और एट द सेम टाइम increasing the lung capacity and developing the immune system. So accordingly, pranayam is the one of the important vital component of yoga that directly or indirectly affects the proper functioning of different system of the body. If you practice pranayam regularly, it shows beneficial impact upon respiratory system, circulatory system, digestive system, and endocrine system. So pranayam ensures more oxygen to lungs and to some extent control the functioning of nervous system. Okay, तो इस तरह से ये थोड़ा सा प्राणायाम का इफेक्ट मैंने आपको बताया। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम स्ट्रेस के बारे में समझेंगे, और प्रोबेबली आपको किसी को पता भी होगा, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम फॉर दैट, बट इट इज आल्सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। ओके, शायद आप जानते होंगे। You can see the next slide में आपको एक मैंने ये दिया है। The stress has two types. One is the use stress and other one is the de-stress. So use stress I can say is the useful stress and de-stress I can say the harmful stress. Okay? तो जब भी हमारे एग्जाम्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसके लिए हमें तैयार होना है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है, that is the important stress, ताकि हमारी जो क्वालिटीज है, हमारा जो एडॉप्शन है, वो और बढ़ जाता है। वी विल बी मोर रेडी फॉर दैट सिचुएशन। बट अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर रहेगा, सो दैट कन्वर्ट्स इनटू डी स्ट्रेस, एंड दैट डी स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर आवर endocrine secretions, यानी कि hormonal disorders, and leads to different type of diseases. Okay, तो हमें जब ये योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इन दैट दिस ऑल कम इनटू द बैलेंस एंड एप्रोप्रिएट स्टेट, यानी कि एक रिक्वायर्ड स्ट्रेस जो है वो रहेगा ताकि यू कैन परफॉर्म नाइसली, बट दैट विल नॉट क्रॉस द लिमिट, दैट विल बी इनटू दैट प्रपोर्शन। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं कि ओवरऑल अकॉर्डिंगली ये पूरा आप नेक्स्ट इस पे भी देख सकते हैं कि कैसे वो हाई होने के बाद जब वो डिस्ट्रेस पे जाता है, तो ही वो हमारे हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। So nowadays it is said कि 80% of diseases are stress related. Even doctors will tell you कि more of जो है वो psychosomatic disease है। Even बहुत सारे हमारे पास patients आते हैं with the complaint of back pain, लेकिन उनके सारे reports are normal. So that is due to stress, because due to stress some muscles are getting strained, और इस तरह का धीरे से बाकी की जो physical problems है वो होने की begin, यानी कि वो start हो जाते हैं due to that stress. So for example, a chest pain may be caused by stress and no physical cause be found. Okay, IBS is the one of the example we can take. You might be knowing IBS is the irritable bowel syndrome, rheumatoid arthritis, bronchial asthma, diabetes, insomnia are the few examples of psychosomatic diseases. यानी कि उन्हें हिंदी में कहा जाता है मनोकायिक विचार, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का कोई भी डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से ये सारी तकलीफें डेवलप हो रही है।
सो मोर आई वुड लाइक टू टेल यू कि फिजिकल एक्सरसाइजेस तो अच्छे है ही, लेकिन मोर वी हैव टू फोकस फॉर अवर स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो स्ट्रेस लीड्स टू मेनी एलिमेंट्स. आप आगे के स्लाइड पे देख सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस है, इवन अस्थमा, डायबिटीज, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि नेक पेन, बैक पेन, कोलाइटिस और एसिडिटी, अल्सर्स, ये सारी जो रिलेटेड डिजीजेस आर लिंक्ड विथ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस का और एक कारण भी है, छोटा सा मैं आपसे शेयर कर सकता हूं. आप सभी को पता होगा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज. उसमें से एक पर्सनालिटी इज कॉल्ड ए टाइप पर्सनालिटी. आजकल हम सभी का ज्यादातर वही हो रहा है. अगर मैं छोटे से एग्जांपल में कहूं तो ए टाइप पर्सनालिटी को अगर जानना है तो वो कैसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम या ये कोई भी बात उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से मुझे लगता है कि वो होना चाहिए. नो चेंज. तो वी स्टक इनटू आवर थिंग्स. हम अपने आप की बातों को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते और सिचुएशन कभी ऐसा हो जाता है कि वो बदल जाती है एंड वी कैन नॉट हैंडल दैट एंड दैट क्रिएट्स स्ट्रेस. तो थोड़ा थोड़ा सा हमें लाइफ में हमारे एटीट्यूड्स की तरफ ध्यान देना होगा, कुछ बातों को चेंज करना होगा और धीरे धीरे से हमारे अंदर एक बैलेंस लाना होगा ताकि हम एक अच्छे हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकें. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको कहा, व्हेन वी आर अफ्रेड एंड और एंशियस बाय कोरोना वायरस, अभी जो चल रहा है, काफी समय बीच में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन. द हार्ट रेट में इंक्रीज एंड सिम्टम्स लाइक पाल्पिटेशन, फीलिंग सिक. ये अचानक से आपको सिर्फ मन में डर आ जाता है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो हार्ट रेट बढ़ जाते हैं. सिम्टम्स लाइक पाल्पिटेशंस का फीलिंग आने लगता है, ट्रेमर होने लगता है, बात करने में हम थोड़ा सा ट्रेमर, शेकिंग होने लग जाता है, स्वेटिंग, ड्राई माउथ. ये सारा अचानक से फिजिकल कैसे हो गया? बिकॉज कुछ देर पहले मुझे स्ट्रेस हो गया, यानी कि मैं अचानक से थोड़ा सा घबरा गया उस डिजीज से और उसका जो सिम्टम्स है वो फिजिकली मुझे एक्सपीरियंस होने लगे. इवन चेस्ट पेन, हेडेक आई कैन फील with that fear, with that anxiety and stress. And this is what, और यही हुआ है ज्यादातर ये कोरोना के पूरे समय में कि हम उस डर से, एंजाइटी से स्ट्रेस में आ गए एंड ड्यू टू स्ट्रेस हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे से कम होने लगा एंड दैट जो डिजीज है वो और ज्यादा स्ट्रांगली हमें अटैक करने लगे. तो योगिक प्रैक्टिसेस आर सच मेथड्स वेयर corrections are brought about in psychophysiological functions through lifestyle changes and purification of various channels in the body. तो important ये है कि हम बहुत सारे आसन तो जरूर आप सीखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा there are a lot of asanas, आप properly traditionally उसे सीखें और regularly practice करें. At the same time मैंने जैसे आपको कहा ये stress management is also equally important. तो lifestyle में थोड़े से हमें changes लाने हैं. So the modern diseases are believed to have a psychological component derived from stresses and strain of everyday living. हम दिन भर एक बहुत स्ट्रेस में, एक टाइट शेड्यूल में जी रहे हैं, इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा दिख रहा है अभी के दिनों में. तो लोअर बैक पेन एंड हाई ब्लड प्रेशर आर द पार्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ. इमोशंस conflict are destructive in nature. तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव इमोशंस की तरफ फोकस करना होगा. ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो उसी तरफ लीड करती है. किस तरफ? अगर जैसे जैसे रेगुलर प्रैक्टिसेस योगिक करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे सारी इमोशंस, सारी जो ओवरऑल मेंटल स्टेट है दैट इज टर्निंग इन पॉजिटिव वे. So thus psychosomatic conditions slowly move from functional impairment and cellular disturbance to the structural alteration. ठीक है, जिसे हम पैथोलॉजिकल चेंजेस कह सकते हैं. बाद में उसे वही फिजिकल चेंजेस फिर हम रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं. तो योगा एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस. तो योगा कैन नॉट ओनली हेल्प इन फिजिकल एलिमेंट्स बट एट द सेम टाइम दैट इज अ वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर साइकोसोमैटिक डिजीज एज वेल. यानी कि हम स्ट्रेस से संबंधित कोई बीमारियों में है या फिजिकल एलिमेंट में है, दोनों से भी ये जो योगिक प्रैक्टिसेस है हमें इफेक्टिवली हमें काम आ सकती है. ओके, तो इसलिए हम थोड़ा सा क्विकली देखते हैं कि नीड ऑफ योगा क्यों है. तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि जैसे ही हम ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और बाकी की प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हैं तो और एक पार्ट है यहाँ पे. ब्रेन हैज टू पार्ट्स, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन. यू माइट बी नोइंग दैट.
तो जो लेफ्ट ब्रेन है उसकी क्वालिटीज क्या है? दैट इज एनालिटिक, लैंग्वेज, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, ये सारे काम है हमारे लेफ्ट ब्रेन के। दैट इज गुड, नाइसली एक्टिवेटेड नाउअडेज। लेकिन जो हमारे राइट ब्रेन के फंक्शंस है वो थोड़े से भी डोरमेंट है, उनकी तरफ थोड़ा सा काम करना जरूरी है, एंड योगा विल हेल्प फॉर दैट एज वेल। अब राइट ब्रेन के फंक्शंस क्या है? आर्ट एंड अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, intuition, insight, right? These are the fundamental functions of right brain. Holistic thought, okay, three dimensional, तो ये सारी चीजें comes under right brain। तो योगिक प्रैक्टिस जैसे हमने अभी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, बाकी के प्रैक्टिसेस है, तो इनसे कहीं ना कहीं स्टडीज और इवन साइंस हैज आल्सो एक्सप्लोर दीज थिंग्स कि ये सारी प्रैक्टिसेस से ये भी जो मैंने अभी अभी आपसे शेयर किया ये चीजें भी होते हुए दिख रही है। सो देयर वी नीड द बैलेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। ओके, सो आवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ योगा is the answer for all these things. प्राणायाम एंड मुद्रास, और मुद्रास का भी बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। So प्राणायाम एंड मुद्रास silences the agitated centers of the mind and adjust for faulty endocrine secretion। तो जैसे ही हम प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे जो एजिटेटेड सेंटर्स ऑफ माइंड है वो साइलेंस होने लगते हैं और इंडोक्राइन फंक्शंस जो है और अच्छी तरह से डेवलप होने लगते हैं। Practices automatically bring sobriety in our nature, and these are the things which are seen and studied in yoga. So character and sobriety are the expressions of the inner purity of mankind, right? So इसके अलावा even yogic practices आप देखेंगे as a student can give you the extraordinary memory that comes with the yogic practices due to this practices. Some research has been done on the hormone which are present in the body at the time of learning. There are certain hormones which are present at the time of learning. With the help of the yogic practices, वो hormones की secretion अगर बराबर हो रही है तो your learning will be more appropriate, right? तो ये सारी चीजें डिटेल में आप आगे सीख सकते हैं, but today we are having limited time, so I'm giving it the brief of everything what is included in the yoga. So the different hormones correspond to different glands, and these hormones also correspond to different state of consciousness. So there is a hormone of anger as well as hormone of well-being. तो ये जितना हमारे बैलेंस होगा उतना ही हम देखेंगे कि ओवरऑल हेल्थ इज इंप्रूविंग। ओके, द लास्ट पार्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये अभी जितनी भी बातें हमने सुनी है हो सकता है आप उसमें से काफी सारी बातें जानते हो या और आप जान लेंगे आगे, लेकिन द प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग हियर विद एवरीवन इज द इम्प्लीमेंटेशन। हम अभी सवाल यही उठता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद हमें करना क्या है, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड बिफोर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली, बिकॉज योगा इज द प्रैक्टिस व्हिच हैज टू बी लर्न फर्स्ट। आप हर एक प्रैक्टिस जो भी आसन है उसे प्रॉपर्ली कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से मसल्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ब्रीदिंग करते वक्त क्या ध्यान देना है, तो ये पहले आप जब प्रॉपर्ली सीख जाएंगे देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद इन द 1 मंथ। मैं आप सभी को कह सकता हूं 1 महीना प्रॉपर आप प्रैक्टिसेस को सीखें और प्रैक्टिस करें, एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ कि क्या चेंजेस आपको उसमें से फील हो रहे हैं। So in a way, educating the whole brain will develop receptive minds, and that will automatically develop the complete responsive character within us and extraordinary memory. These are all related, and developing the attention and awareness. और ये सब होने की वजह से learning will become more easy, and that is equal to healthy youth. Okay, so we can create a healthy youth for giving them a success, यानी कि healthy youth is the path to successful youth, and successful path is the youth for progressive all over the nation. Okay, तो ये छोटी सी कुछ बातें थी जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, और एक छोटा सा हम प्रेयर के साथ अभी सेशन एंड करने के पहले कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे गौरव जी ने कुछ शेयर किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ आपके ये है कि अभी हम ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें आई के यानी कि आंखों के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर आईज, बट वो सारी प्रैक्टिसेस को कैसा है कि प्रॉपर्ली सीखना जरूरी, बिकॉज आईज इज अ डेलिकेट पार्ट।
तो उसमें हम किसी भी तरह से कुछ सीखें और करें, आई विल नॉट सजेस्ट दैट, बट एटलीस्ट अगर आप आंखों को रेस्ट देना चाहते हैं तो जस्ट डिप अ सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ इन वार्म वाटर, छोटे से वार्म वाटर में एक सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ को आप भिगाएं एंड फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन, आराम से कहीं लेट जाएं, क्लोज योर आईज एंड प्लेस द वार्म क्लॉथ ऑन योर आईलिड्स। तो थोड़ा सा वो कपड़ा आप रखें आंखों के ऊपर एक जस्ट 1 or 2 minutes और देन रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 3 times। इतना भी अगर आप करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में तो दिस विल गिव यू अ सूदिंग इफेक्ट टू योर आईज। छोटा सा वार्म वाटर में हल्का सॉफ्ट कपड़ा भिगाना है, आंखों पे बंद करने के बाद रख देना है, आपको लेट जाना है 1 से 2 मिनट के लिए, फिर वापस उस कपड़े को आप वापस से भिगाएं और फिर से रखें। ऐसे 2 या 3 बार आप अगर करते हैं तो दैट इज गुड इनफ टू गिव अ रिलैक्सिंग इफेक्ट टू योर आईज। And then second was, how does meditation help? Okay, so meditation is what? Meditation यानी कि sure, I'll just check. I'll check the inbox. तो जैसे आपका कहना था कि what does meditation, how does meditation help? So अगर हमने थोड़ा सा भी समझेंगे meditation यानी क्या है, कि अगर हम breath focus meditation कर रहे हैं, I will share you the link also, right? You just go and practice that. So in that meditation, what we are doing, we are focusing on our breath. Okay. So just let me, you just think that breath is past, future or present. Obviously that is present. हम नहीं कह सकते कि हमने 5 मिनट पहले सांस लिया था या 10 मिनट के बाद हम सांस लेने वाले, right? So when I am focusing on my breath, so my mind is in present situation, and that is what is called meditation, I can say, because हम अगर past और future, because हमारे thoughts तो बहुत चलते रहते हैं मन में, right? तो वो कुछ past में रहते हैं और कुछ future में रहते हैं। तो past thought will जो है वो agitation create करते हैं और future के thought जो है वो insecurity को develop करते हैं। तो what we have to learn to remain in present, because when we have to take action, हमें जो एक्शन कब लेना है, डिसीजन कब लेना है, प्रेजेंट में, लेकिन मेरा मन प्रेजेंट में रहने के लिए हमने कभी उसको ट्रेन किया ही नहीं। तो ब्रेथ फोकस मेडिटेशन इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे यू कैन प्रैक्टिस, एंड यू कैन सी कि जैसे ही ये हो रहा है तो आपके जो थॉट्स है ना, अभी वो काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हैं, उसका स्पीड भी बहुत है, बट द व्हेन यू स्टार्ट रेगुलर दिस स्मॉल मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन, यू विल ऑब्जर्व कि आपके थॉट्स का जो नंबर से वो कम हो रहा है और स्पीड स्लो डाउन हो रहा है। The moment आपके thought का speed slow down होगा, you will feel a calm down mind. Right? So 10-minute meditation will give you the good soothing effect. You just try practically. I will definitely share the link of that meditation. Right? And the second thing was there a question about concentration. Someone is unmuted. Please. About concentration. Also, we have gone through this presentation कि कंसंट्रेशन में भी सेम चीज है, हम इतने विचारों में है कि वी कैन नॉट कंसंट्रेट। व्हेन वी विल लर्न हाउ टू बी प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रीथिंग मेडिटेशन। प्लीज म्यूट, समवन इज अनम्यूट। I'll just see. Okay, yeah. Now it's okay. So जैसे मैंने आपको कहा कि कंसंट्रेशन भी क्यों नहीं हो पा रहा है हमसे, बिकॉज देयर आर मेनी थॉट्स देयर। तो हम सामने जो भी सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। तो व्हेन वी विल लर्न टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ थॉट, तो ऑटोमेटिकली आवर कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। तो द सेम मेडिटेशन विल हेल्प यू फॉर कंसंट्रेशन एज वेल। एज अ स्टूडेंट, समवन हैज आस्क्ड how we can maintain our motivation level throughout the day. And the answer is the regular yoga practice. आप सुबह उठकर रोज 45 minutes का practice कीजिए. You will not need anything to motivate yourself. You will be completely motivated and full of energy and enthusiasm. That is the benefit of regular yoga practice, but with the proper training you have to learn that. Okay. So which particular asana to follow daily to feel relaxed? एक question ऐसा भी है कि which asana we should follow daily to feel relaxed. So the simplest asana I can suggest you is the Shavasana. Okay, in that you have to just lie down and observe your breath. And one more thing I can suggest, that is Avyav Dhyan. Avyav Dhyan is the body scan meditation. So that link also I will definitely share with all this team, and automatically you will get that link. That Avyav Dhyan is for 10 to 15 minutes only. Just you go and just
listen those instructions which are being given there and just follow that. And daily 10 to 15 minutes twice a day you can do that, and you will see the complete relaxation you will get of 1 hour in that 10 minutes. Okay, so these are few things which you can do. What is the best time? Someone had asked me for practice. Ideally that is morning, but as you can practice in the evening as well, but morning is more beneficial. Why? Because yoga practice needs empty stomach. आपका पेट खाली होना जरूरी है. तो आप रात भर, हमने जो डिनर हमारा हुआ है 10-12 घंटे पहले हुआ है, तो दैट इज आइडियल. वन मोर थिंग, सेकंड थिंग, आप रात भर आराम करने के बाद उठे हैं तो यू आर फ्रेश, एनर्जेटिक, उस वक्त पूरा माहौल साइलेंस है. दीज ऑल थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर योगा प्रैक्टिस. बट अगर हमारे पास सुबह समय नहीं है तो यू कैन प्रैक्टिस इन द इवनिंग ऑल्सो. बट इतना ध्यान रखना है कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद हमें प्रैक्टिस करना है, अगर हम आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. और प्रैक्टिस करने के बाद एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आपको लिक्विड 30 मिनट्स के बाद लेने हैं, और अगर आपको सॉलिड कुछ खाना खाना है तो दैट इज 45 मिनट और 1 आवर के बाद आप उसे ले सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन विच इज हियर, आई कैन सी दैट इज डिफरेंट वेज टू कीप आवर माइंड काम ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशन में हमारे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो व्हाट वी कैन डू. तो ये सारे रिलैक्सेशन मेथड्स जो मैंने अभी आपसे शेयर किए और जो मैंने आपको डीप ब्रीदिंग के बारे में बताया, दिस ऑल विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर ऑल दिस थिंग्स. I'll just check the chat box. Yeah, thank you Neha ji for your message. The second question is, if your mind catches one thought and get wandering over it, lacking concentration on what we are doing, how to get it right? Second, can you tell the benefits of doing Surya Namaskar daily? Okay, तो पहले हम विशाल जी का क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा मन एक ही विचार पे अटक जाता है, उससे बाहर ही नहीं आ पाता है. दूसरा है सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या, राइट? ओके, हाँ. तो जो क्वेश्चन था कि हमारे जो विचार है एजिटेशन के या कुछ है, जब उसी में उलझ जाते हैं तो वही मैंने आपको कहा, दैट इज द ए टाइप पर्सनालिटी. यानी कि हम, हमारी बातें हमसे छूटती नहीं है. वी गेट. तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ये छूटना चाहिए, ये थॉट भी छोड़ देना है. जस्ट बी विथ इट, राइट? और ये जो मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिस आपको बताई, जस्ट ट्राई दैट. डेली 10 मिनट्स के लिए आप कीजिए, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से देखेंगे कि हमारे जो ओवरऑल, मैंने आपको कहा कि जो एजिटेशन सेंटर्स है वो काम डाउन होने लगते हैं. ऑटोमेटिकली जो हमारा ग्रिप है जो बहुत टाइट है वो उतना टाइट नहीं रहेगा. And this I am sharing with my own experience, because ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने भी मेरे लाइफ में अनुभव की है कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जो हमसे वो बातें मन से जाती ही नहीं, वही बातें हमारे मन में आते रहती है. वो क्यों आ रही है? बिकॉज हम उसे नहीं छोड़ रहे. वो नहीं छोड़ रहा है ऐसा नहीं है, हमने पकड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. तो हाँ, बस उसको रहने दे. नहीं जा रहा तो भी नो प्रॉब्लम. जस्ट स्टार्ट दिस फ्यू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड दिस रिलैक्सेशन टेक्निक. जैसे ही आपको कुछ ऐसे लगा तो मैं आपसे कुछ लिंक शेयर कर रहा हूं, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे जस्ट स्टार्ट दैट, और फ्यू डेज में यू विल डेफिनेटली फील द चेंज. एंड नाउ वी विल कम टू द सूर्य नमस्कार. सी, सूर्य नमस्कार जो है दैट इज अ चेन ऑफ आसना, योगासनास, राइट? एंड दैट इज अ विन्यास फॉर्म. विन्यास यानी कि इट्स अ चेन ऑफ आसनास. एक आसन से हम दूसरे आसन में जाते हैं, दूसरे आसन से तीसरे आसन में जाते हैं, एंड देयर इज अ ब्रीदिंग पैटर्न आल्सो विद दैट. तो फायदे क्या है? तो टोटल 6 से 7 आसन हम उसमें करते हैं. तो अलग अलग आसन के पूरे फायदे में मिलते हैं. पहला आसन है बैकवर्ड बेंड, हस्त उत्तानासन. जब हम बैकवर्ड बेंड करते हैं तो हमारे पूरे लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, तो वी कैन इनहेल मोर नाइसली. बैकवर्ड बेंड हो रहा है तो स्पाइन जो है हमारा वो बैकवर्ड बेंड, तो दिन भर हम जो फॉरवर्ड बेंड होकर हुए काम करते हैं तो नेक और बैक पे ओवर स्ट्रेन हो जाता है, तो वर्टिब्रल अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, तो नेक एंड बैक पेन की शुरुआत होती है. तो अगर हम ये बैकवर्ड बेंड गए तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर बैक प्रॉब्लम्स, यानी कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स और द हेल्थ ऑफ स्पाइन एंड ओपनिंग ऑफ द लंग्स. तो ये हो गया पहले आसन का फायदा. देन सेकंड इज द पदहस्तासन, फॉरवर्ड बेंड. तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन. तो जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन होता है तो दैट मेक्स स्पाइनल कॉर्ड मोर फ्लेक्सिबल, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ब्रेन. उससे ही सारे नर्व्स हमारे अलग अलग ऑर्गन से जुड़े हैं. तो जितना उसका स्ट्रेचिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है. तो एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन होगा. ओवरऑल जो बाकी के हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ मसल्स हैं, इन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है. तो दैट इज गुड फॉर डाइजेशन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन थर्ड आसन इज अश्व संचालन, अर्धभुजंग आसन भी उसे कहते हैं, जब हम एक पैर पीछे लेके जाते हैं. तो हर एक आसन के ऐसे अलग अलग फायदे. तो ओवरऑल सूर्य नमस्कार से
डाइजेशन ऑर्गन्स पे एक अच्छा इफेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत अच्छा एक इफेक्ट, यानी कि उनकी फंक्शंस जो है वो और इंप्रूव होने में सहायता होती है। एट द सेम टाइम ब्रीदिंग का पैटर्न होने की वजह से लंग कैपेसिटीज और ओवरऑल ब्रीदिंग जो है वो और इनहांस होने लगता है, तो दैट कैन गिव यू अ गुड इम्यून सिस्टम एज वेल। अगर आप उसे थोड़ा सा स्पीड से करते हो तो आपका फैट बर्निंग के लिए भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन सूर्य नमस्कार में लिमिटेशंस ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके नी पेन है, स्पाइनल डिसऑर्डर है, तो आपने नहीं करना, अवॉइड करना है, क्योंकि हर एक आसन के साथ फायदे बहुत है, लेकिन प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। तो अगर हमें हार्ट डिसऑर्डर्स है, हाई ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है, नी पेन है, बैक पेन है, या रिसेंटली सर्जरी हुआ है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। अदरवाइज यू कैन प्रैक्टिस। अगर आप हेल्दी हैं, फास्ट प्रैक्टिस करना है, तो आप फास्ट भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड डायनामिक, तो उससे आपका फैट बर्निंग, वेट मैनेजमेंट भी उपयोगी है उसके लिए भी। अदरवाइज जनरली एक मॉडरेट स्पीड से आप करिए, तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन एटलीस्ट 10 to 15 मिनट, यानी कि 8 से 10 सेट अगर आप करते, अगर आप प्रॉपर्ली जानते हैं। अदरवाइज एक छोटा सा सेशन हम कभी रखेंगे आपका, आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार इन 10 to 12 minutes, and that daily you can practice. I hope I had covered the questions. Thank you. If any questions are there. Thank you, Shubham ji. Thank you. Thank you. Hope it was work for you all. I tried my best to share this complicated and deep knowledge in a way कि आप सभी उसे ठीक से समझ पाए, and I hope your time was worth. Thank you for giving me the opportunity to share my knowledge with you all, to entire team. Thank you once again. Thank you, especially Gaurav ji, and for your efforts, and with entire your team. Thank you. That is okay, Vishali ji, don't worry. I can understand some technicalities are there, so it is okay. So, should we stand? Should we stop? Conclude the session? Thanks a lot, sir. Now I would like to request Tanvi to end the session. Yes, Gaurav. I would now like to express a vote of thanks on behalf of the entire BCP CSR committee. Special thanks to our speaker, Mr. Vijay Kukreja, sir. Your gracious presence has enlightened our lockdown health awareness campaign, and it has been an honor to have you, sir, today. Thank you. Your guidance in dealing mental health problems with simple therapies like yoga and meditation was really helpful. I would now like to thank Dr. Galvina Pereira and Dr. Sagar Patel, sir, our student coordinators, for your constant guidance and valuable inputs. Thanks to our principal, ma'am, Professor Krishnapriya Mohan Raj, for your constant support towards us. Last but not the least, I would like to thank my fellow BCP CSR members. Each member worked diligently, and our efforts have made this event a huge success. So, by ending my words here, I would like to thank Bombay College of Pharmacy for providing this platform to us and spreading this awareness amongst the public. Thank you, everyone, for joining today, and heartily thanks to our audience for being so patient. Thank you. Over to you, Gaurav. Thank you. I wish you all success and healthy life ahead. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such a wonderful session, and thank you, Tanvi. Now I would like to request our coordinator, Dr. Galvina ma'am, to have a word with sir. Hello, Over sir. to you, ma'am. Hello, sir. Galvina here. It was hello. indeed a very pleasant session. You know, the students, with students, we often say the sooner the better. And you imbibe the right kind of knowledge at the right time. So I hope with as the time passes and as they relate to more and more of these conditions, they can use all the knowledge. I really appreciate your deep knowledge in this stream. It was like worth it, totally worth it. Thank you. I mean, Thank it you would very have much. taken years to gain all this knowledge, and we are imbibed or kind of floored by your knowledge in this stream. So we would want more of it. Definitely. Always we are there. We have to work as a team. Yeah, and still to continue, you should also be inspired by so, my dear students, to see that even after 2 hours is as fresh.
you know, like still has all the energy probably coming from yoga, I would say. Credit goes to Right, So absolutely. thank you, sir. Thank you for giving your valuable time to our students. Not only valuable time, but the valuable lessons that you learned and given to them as a very generous heart. So thank you very much. And to all my dear students, thank you for being such an enthusiastic crowd for staying tuned. Now, just a kind request for our documentation, if you can just switch on your cameras for a moment, everyone, so that we could record this wonderful moment, and then probably, sir, we could just share it with you as well. Yeah, sure, no problem. So just for a moment, everybody, if they can kind of switch on their cameras so that we can just document this wonderful session. Yeah, are we done? Okay, thank you. Thank you very much, sir. Ma'am, And just thank a you, second. everyone. Yeah. Thank you. Have a nice time. Thank you. Same here. Thank you. Have a nice day and have a good life ahead. Thank you. You too, Should sir. we end Thank now? you. Thank you. Yeah. So thank you so Thanks much, a lot, guys, sir. and stay safe, stay home. Bye bye. And I'll be Thank sharing the links you, also. sir. You have to practice those practices. Yes, sir. Sure, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sure. Okay. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bye. sir. Thanks a lot, sir.